Today, on this auspicious occasion of a Republic Day, I like to welcome you all for this one-day national seminar on positive thinking through yoga and meditation organized by Department of Sports Science College, Nanded. A very warm welcome to all the dignitaries. Every event has to be begun by offering floral tribute to Pujya Swami Ramananda Tirthaji as his ideology is being carried forward in the form of Science College Nanded. National seminar on positive thinking through yoga and meditation. I welcome to all the honorable dignitaries present here. I welcome the President, Honorable Dr. Venkatesh Kabde sir, President, Nanded Education Society, Nanded. I welcome the patrons of our today's program, Honorable Dr. Venkatesh Kabde sir, President, Nanded Education Society, Nanded. Honorable Dr. C.A. Praveen Patil sir, Vice President, Nanded Education Society, Nanded. Honorable Mrs. Shamal Deepatki Madam, Secretary, Nanded Education Society, Nanded. Honorable Shri Prafulla Kumar Agarwal sir, Joint Secretary, Nanded Education Society, Nanded. सर बाकीच्यांचा आवाज बंद करा ना, सगळेच आवाज यायला लागले. I welcome Convener Dr. D.U. Gavai sir, Principal, Science College, Nanded. Co-convener Dr. L.P. Shinde sir, Department of Chemistry. Organizing Secretary Dr. A.P. Borikar sir, Director of Sports. Organizing Secretary Dr. Mohsina ma'am, Department of Computer Science. I welcome the organizing committee of this event, Dr. D.D. Pawar sir, Shri E.M. Khillare sir, Professor A.S. Bansode sir, Dr. V.V. Kulkarni madam, Dr. K.S. Shilewar sir, Dr. V.R. Marathe sir, Dr. R.A. Muneshwar sir, Shri S.F. Gore sir, Shri M.R. Durke sir, and coordinator Mrs. Pooja S. Shitole ma'am. I request Dr. Mohsina ma'am for briefing us about this today's one-day national seminar. Thank you, Suresh. Suraj Nayak. I, Dr. Mohsina, Department of Computer Science and IT Science College, Nanded. Today's organizing secretary take the privilege today's event one-day national seminar on positive thinking through yoga and meditation. I congratulate all on 73rd Republic Day celebration. As a part of it, I welcome all the dignitaries, organizing committee, Science College family members, anchoring of the event, anchors of the event, and all the participants of one-day national seminar on positive thinking through yoga and meditation organized by Department of Sports. Departments of Sports, Science College Nanded has all the facilities for conducting all type of programs, all type of sports, as well as it has been well equipped indoor hall with 4 wooden courts and 400 running track with 110 lines constructed under UGC 11th plan. The department has a ground facility for volleyball, football, cricket, kabaddi, kho and well-equipped gym, etc. Sports department has organized West Zone Women Cricket Tournament, West Zone Table Tennis Tournament. We were honored by the special guest for this tournament was Mr. Kamlesh Mehta, Arjun awardee. Department of Sports regularly conduct UTI,
Inter-University Tournament, ICT, Indian Cricket Team, and ICT Camp Coaching for the summer coaching camp for the students, college students, as well as school students. As today's era is known for the IoT era, fast-growing technology, and left human as with no emotion. However, we are humans born to be in the social society. There are many advantages and disadvantages of technology. In fact, technology greatly influences every part of life in modern world. Technology has allowed significant progress in various fields, including education, business, workplaces, health, etc. It involves constant progress of replacing old technologies with new one or more efficient one. This ensures our lives are more accessible to a made rapidly growing digital world. Social isolation is increasing due to the personal computer technology like smartphones and laptops. Both teen and teenagers are spending more time on social media, internet surfing, playing games, video games, ignoring their real lives. With due respect, the significance of positive thinking through yoga, which is an holistic approach, is used various posture, exercises, mantras, and meditation that enhances the thoughts and changes the mindset of a person, and adapting it based on this the concept has been organized one-day national seminar on positive thinking through yoga and meditation. We have received about 200 participants all over India, mostly from Maharashtra side. One-day national seminar has 2 resource persons from Tej Gyan Foundation, Happy Thoughts. First person, resource person is Shri Chandrasekhar Fadnavis, and the second resource person is Mrs. Swara Fadnavis. Both will be enlightening the participants how to build up their minds. And special thanks to Vijay Sir, Shri Vijay Sir, who is the organizing member or coordinating member of Tej Gyan Foundation, Pune. However, at the end of the session, all the participants will be provided with a feedback form link, and I request all the participants to please fill up the feedback through the link, and e-certificate will be distributed at the end of this session. Once again, I welcome all and express my deepest thanks to all the participants. Thank you, everyone. Thank you, Mohsina ma'am, for your valuable words for motivating us. I welcome the chief guest of our program, Mr. Chandrasekhar Fadnis sir from Tej Gyan Foundation, Pune, Swarda Fadnis ma'am from Tej Gyan Foundation, Pune, and Shri Vijay Kumar Shiramwar sir from Tej Gyan Foundation, Pune. रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है जब महफिल में आपसा कोई कदम रखता है. I request our honorable principal sir, Dr. D.U. Gawai sir, to please guide us with his valuable words. Good morning to one and all present here. Honorable President of today's inaugural function, Dr. Venkatesh Kabde sir, who is President of Nanded Education Society, Nanded. We admire your spirit of integrity with 100% dedication to the Nanded Education Society, sir. Respected Chief Guest and Resource Person, Dr. Chandrasekhar Fadnis, Tej Gyan Foundation, Pune, who has spared his time out of his busy schedule. Another resource person, Swara Fadnis, and Vijay Kumar sir. Our co-convener of this seminar, Dr. L.P. Shinde, Professor, Department of Chemistry. Organizing Secretary of this seminar, Dr. Ashwin Borikar, Director of Sports.
and another organizing secretary, Dr. Mohchina Tahsin, Department of Computer Science, fellow delegates, faculty members of college, and participants from all over India, student friends. It gives me an immense pleasure to extend you all very warm greetings on behalf of college. It is my pleasure and privilege to welcome all to grace this occasion. Today, we all have gathered here for very important national seminar on positive thinking through yoga and meditation, which is organized by Department of Sports of this college. I am extremely honored and feel privileged to have a special resource person, Dr. Chandrasekhar Fadnis and Sora Fadnis. It's my pleasure to introduce our college in brief. Our college is run by Nanded Education Society Nanded, which is established in the year 1950 by Pujya Swami Ramanand Tirth, who was a great visionary and leader of Hyderabad liberation struggle. Our college is re-accredited with A grade by NAC in third cycle, CGPA 3.38. It is recognized by DST for FIST program. We received CPE status college with potential for excellence by UGC New Delhi in 2017. We also have the positions 72 at national level in NIRF and received Best College Award in 2018 by Swami Ramanand Tirth Marathoda University, Nanded. It is a single faculty college imparting science education from 11 to MSc and PhD. Currently, the college is offering 15 science subjects at UG level with 4 languages and 11 subjects at PG level. As far as research activities are concerned, we have central research facility with latest equipments and research projects, 4 major projects and 18 minor research projects completed in last 5 years. And 5 research projects, they are ongoing. There are 124 students working for PhD, 40 students awarded PhD in last 5 years. Our faculty published their research paper in national and international journals of high repute. More than 300 research papers published in last 5 years. Therefore, research at Science College has become an integral part of teaching and learning. There are 40 university rank holders at PG level in last 5 years. 42 students qualified NET, SET, GATE, JAM examination. The library facilities is provided with more than 36,000 books, including e-books, e-journals, to update the knowledge to keep space with a global student. We have active NSS unit, which is awarded as best NSS unit at state level. Then we have NCG unit, one of the best unit in university, our university jurisdiction. Sports facilities includes a very big ground, indoor hall with 4 wooden courts and 400-meter running track. Vision of the college is to think big and achieve the same with the vision of the faculty and hard work of the students. The motto of the today's seminar is to encourage the faculty and the students to develop mind of positive thinking. Regular yoga practice creates mental clarity and calmness, increases body awareness, relieves chronic stress patterns, relaxes the mind, center attention and sharpen the concentration, boost metabolism. Once again, I welcome you all for participation from all over the India in this seminar. Thank you one and all. Thank you very much.
Thank you, sir, for your inspiring and valuable words. 100 चांद भी आ जाए महफिल में तो वो बात न रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही महफिल की रौनक बढ़ेगी. I request Mrs. Shamaldi Patki ma'am to deliver her address. Patki madam not join. So we'll proceed with the president, sir. Yes, yes. yes, madam. Suraj Naik will Yes, ma'am. proceed with the president, sir. Presidential address. जो दिल का हो खूबसूरत ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं. I welcome Honorable President Dr. Venkatesh Kabde sir and I request him to deliver his address to us. Sir, please. Thank you. Welcome to this national seminar on positive thinking through yoga and meditation. The honorable guest of this function, Chandrasekhar Ji Phadnis, Swara Phadnis of Tej Foundation, honorable principal of the college, Dr. Gawai, organizing secretaries, Dr. Mohsina Madam, head of the department, Dr. Borikar, Nana Shinde, and other organizers of this seminar, and all the members of the audience. It is my great pleasure to participate in this very important seminar, national seminar. And I think like breathing, thinking process is inevitable for our life. It is almost continuous process, whether you like it or not. Thoughts shape our life, and the thoughts can be positive or they can also be negative. Our aim should be to embrace a way of life which will encourage the positive thinking. In this process, yoga and meditation, they are very important and they could help us. If these methods are followed by us, then the positive thinking could make our life successful and happy. And in this very important subject, yoga and meditation, these are the two methods. Yoga is a very gentle way to improve our posture, balance, and coordination. Yoga is a very ancient technique, as you all know. Yoga is a systematic practice of physical exercise, breath control, relaxation, diet control, and positive thinking and meditation. It is all aimed at developing harmony in the body, mind, and environment. It involves low levels of physical activity, postures called asanas, breathing techniques called pranayam, relaxation, and meditations. These are the main sutras of yoga. And I think yoga word comes from Sanskrit word. It's a Sanskrit word and it means union. And this is yoga gives a union of mind, body, and enables to have a very equitable equanimity of the mind. And therefore, yoga is a very important means of positive thinking. Yoga is a very supreme science in life, and it has been revealed to the great sages of India several thousand years ago. And I think the fundamental purpose of yoga is to foster harmony in the body, mind, and environment. And I think this thing, meditation, positive thinking, and meditation, these are very essential things. Medically speaking, I would say that body reacts to both opportunistic, both optimistic and pessimistic thoughts by secreting hormones. I can say this as a medical person. For example, if you are afraid because somebody is breaking in your house, then body reacts by releasing hormones called cortisol. And also this can help to fight it out or to run away. And if somebody is very much relaxed and in a happy mood, then also the body releases some hormones. These hormones are called oxytocin and secretions. And these are
feel good hormones that are very important for our well-being. So when we can change our way of thinking and make our thoughts positive, the body responds by making one feel good and cheerful. It's not simple, but this practice is rather very complicated and difficult. It involves concentration, courage, and commitment. When we are faced with a threat, one may feel helpless or powerless. This is an example of negative thinking. By learning meditation, our mind and body can calm down. By learning yoga, physical and mental stress that will go away. One can face challenges of the day with a healthy and fresh mind. And this attitude will help us. One has to practice yoga and meditation for months together. It is not a matter of day, but we have to practice it for months and days in order to experience its benefits. Our mind is a very pliable thing, and mind is all the time thinking, and mind will think one way or the other. And if you don't want negative things, it will happen that way, whether you want it or not. Why think negative or positive? Our aim should be, or our approach should be that take things as they come and face the situation as it comes, and do the best thing that you can in the situation without any kind of attitude. Every situation demands a different type of response. Even positive thinking may not be good in one situation, but maybe so in another situation, because even positive thinking at the wrong place may make you look foolish. So there is no need to have either a positive or negative attitude. Best thing is to react in the situation as it appears, and you use to the best of your capacity and intelligence. So this kind of thinking methodology has to be approached, and one has to also learn a technique of opposite thinking. If there is something exactly opposite to what you are thinking, then you may be able to face the situation in a better fashion. Therefore, it is a kind of challenge to think in opposite fashion, but it does help in the thinking process. So I think these are some of the ideas that come to my mind, and these will help the meditation and yoga and positive thinking. They are all together, and meditation and yoga certainly will think positive thinking. And I believe these are the means which our honorable guest will elaborate further in this national seminar. And I have just made some introductory remarks, and I thank the organizers for giving me this opportunity to think about this rather philosophical and difficult subject. However, it is very important for all of us to practice this yoga and meditation in whatever field of activity we may be there. But certainly a positive thinking is going to help us. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your adding knowledge. Not only sir is a president of Nanded Education Society, but also sir is a heart specialist doctor. Once again, thank you, sir. So I request Honorable Shri Vijay Sriramvar sir to introduce to Tej Gyan Foundation Pune. Sir, please. धन्यवाद सुरेश जी। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों को प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी थॉट्स। साइंस कॉलेज नांदेड़ इनकी ओर से आयोजित आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में तेज ज्ञान फाउंडेशन के द्वारा हो रहे कार्यों के लिए और फाउंडेशन की विचारधारा को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए जो हमें मौका दिया गया है, उसके लिए आयोजकों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संस्था है
हमारे जीवन में अगर हम सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ते हैं, से हमारा आत्मविकास हो सकता है। इस पर बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में इस संस्था में और यह मार्गदर्शन हमें देने के लिए संस्था के संस्थापक सर श्री इनके द्वारा एक बहुत ही विशेष और अनूठी ज्ञान पद्धति इसका सृजन हुआ है, जिसे सिस्टम फॉर विजडम भी कहा जाता है। इस अनोखी ज्ञान प्रणाली द्वारा हमारे जीवन के जो पांचों क्षेत्र हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, तो इन पांचों क्षेत्रों पर एक साथ कैसे कार्य किया जाता है, ये मार्गदर्शन हमें मिलता है। और इसी विशेषता को देखकर तेज ज्ञान फाउंडेशन को अंतरराष्ट्रीय मानक ISO 9001/2015 से भी नवाजा गया है। तेज ज्ञान फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य है उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना तथा विश्व शांति के लिए कार्य करना। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर केवल हमारे मन और विचारों पर ही कार्य किया जाता है। इसलिए तेज ज्ञान फाउंडेशन में किसी भी प्रकार के कर्मकांड या जाति भेद ऐसी बातों को बिल्कुल ही स्थान नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जन्म से लेकर तो अंत तक हमारे शरीर के अंदर दो कार्य निरंतरता से चलते रहते हैं। जैसे प्रेसिडेंट सर से आया था कि हमारी सांसें, पहला कार्य है हमारी सांसें, जो श्वास हम कहते हैं, वो निरंतर चलती है, और साथ ही साथ हमारे दिमाग में चलने वाले विचार, ये दो कार्य जन्म से लेकर। तो अभी भले हम इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन गौर से देखा जाए तो बैकग्राउंड में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चल ही रहे, ये हमें पता चलेगा। तो इस प्रकार से जो कार्य बैकग्राउंड में चलते रहते हैं उस पर हमें गौर करना है। साथ में हम सभी जानते हैं कि अगर हम श्वासों पर कार्य करते हैं, यानी इन्हें एक विशिष्ट और लयबद्ध पद्धति से शरीर के अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रदान करती है, जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे विचारों पर जब कार्य होता है, उन विचारों को एक सटीक और सही दिशा जब दी जाती है, तो वे ही विचार हमारे जीवन में आमूलाग्र बदलाहट लेकर आते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन आनंद से भर देते हैं। और सरसी जी हमें यही ज्ञान, यही मार्गदर्शन एक सिस्टम के साथ बहुत ही सहजता से और सुंदरता से प्रदान करते हैं। आज हमने आते ही हैप्पी थॉट्स यह शब्द सुना, विचार आए होंगे ये क्या है। तो आज हम यह हैप्पी थॉट्स क्या है, तेज ज्ञान क्या है, इस पर हमारे गेस्ट विस्तार में अगले 1.5 घंटे में सुनने वाले हैं। तो अधिक समय नहीं लेते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पर आकर हमारी संस्था को जो हमारे विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है, उसके लिए हमारी संस्था की ओर से मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। Thank you, sir, for the amazing information about Tej Gyan Foundation, Pune. This foundation loaded with lots of information about thought process and positive approach. So let me introduce today's chief guest and resource person. Shresh, unmute yourself. Shresh, unmute ma'am. yourself and speak. Okay, ma'am. Thank you, sir, for the amazing information about Tej Gyan Foundation, Pune. This foundation is loaded with lots of information about thought process and positive approach.
So let me introduce today's chief guest and resource person, Honorable Shri Chandrasekhar Fadnavis, Tejgan Foundation, Pune. Sir has done bachelor's in textile and sir has 30 years of work ex in a textile field. Right now, sir is a managing director of Annabhav Spinning Mills and Garment Industry. Sir was also awarded by state level Shankar Bhushan Award and also state textile managing director, forum vice president, All India Textile Federation advisory member, not only state but also national level best performing organization award leading as an MD, Power Saving and Power Management Award, State Shankar Nishant Award under the leadership of MD. Programs in different organizations, schools, colleges on happy thoughts, speeches, pravachan on Sant culture and India. Best Actor Award in a state and national level, drama activities, singing programs for needy students and women. And the last but not the least, speeches on the stress-free management and spiritual goals. So I request Honorable Shri Chandrasekhar Fadnavis to guide us. Sir, please. Namaskar. Good morning. Can you hear me? सभी सुन सकते हैं मुझे? सगळे ऐकू शकतात मला? Yes, Sir, sir. yes, sir. Yes, sir. We can. थैंक यू वेरी मच. पहले तो आज के बहुत ही खूबसूरत दिन जिसकी वजह से हम आजाद बैठे यहाँ पे हम प्रजासत्ताक का आनंद ले रहे उस रिपब्लिक डे पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. आज के इस शुभ अवसर पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट साइंस कॉलेज नांदेड़ के अवेलेबल यहाँ पे है, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, ऑनरेबल सेक्रेटरी, ऑनरेबल प्रिंसिपल और जो भी बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उन सभी को पहले ही बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, नमस्कार, शुभेच्छा. तो आज के सेशन की जैसे हम शुरू, हमने सभी ने तो ये वर्ड बिल्कुल सुना हुआ है, योगा एंड मेडिटेशन. लेकिन हम तो बहुत बार टीवी ऑन करते ही देखते हैं स्वामी रामदेव जी हमें योगा दे रहे हैं, बहुत से आसन दे रहे हैं, बहुत से प्राणायाम भी हमें सिखा रहे हैं. हम सब टीवी से लेके बहुत से प्रोग्राम्स तक ये सब बातें हमें हमेशा करते रहते हैं. अगर देखा जाए तो योगा जो पतंजलि जी ने बताया है, बहुत सी बातें योगा में हठ योग से लेके आ जाती है, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये बहुत सी बातें हैं जो योगा के बारे में बताएगी. अभी योग क्या है इसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही है. शरीर है, मन है, आत्मा है, ये तीनों को एक ही दिशा में लाना है. मेडिटेशन मतलब ध्यान भी क्या है, ध्यान में कैसे बैठा जाता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से ध्यान किए जाते हैं. शरीर पर उसके कितने फायदे हैं, किस तरीके से करना है, इसके ऊपर भी बहुत सी बातें होती है. लेकिन आज हम इस योग और ध्यान को पॉजिटिव थिंकिंग से, क्योंकि अगर हमारे सोच में, हमारे थॉट्स में ही अगर ये सब बातें आ जाएगी तो, जैसे हम बहुत बार सोचते हैं 31 दिसंबर को डिसीजन लिया जाता है, 1 तारीख को हम उठेंगे, सुबह घूमने के लिए जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम 10 मिनट तो जाएंगे, वॉक करके आएंगे, एक 10-15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे. 1 जनवरी को क्या होता है, जैसे सुबह उठते हैं, कल से देखा जाएगा, नया साल आया है तो कल से देखते हैं. तो इस तरीके से हम जानते हैं फिर भी हम उस पाते हैं. तो आज हम क्या करेंगे, ना ही योगा की प्रैक्टिस करेंगे, ना कोई आसन की प्रैक्टिस करेंगे, ना मेडिटेशन की कोई प्रैक्टिस ज्यादा करने वाले हैं. ये सब करने के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट बात, जैसे तेजज्ञान फाउंडेशन जो है, जैसे यस, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ऑनलाइन है खुद को सभी अनम्यूट प्लीज कर दे. यस, सभी प्लीज अनम्यूट करिए, प्लीज अनम्यूट करिए. हाँ, ताकि अगर खुद को म्यूट करिए, सॉरी अनम्यूट नहीं, म्यूट कर दीजिए. खुद को म्यूट करते हैं तो बात करने के लिए और मजा आ जाएगा, सभी के साथ शेयरिंग भी अच्छा हो जाएगी. तो खुद को म्यूट करते हैं प्लीज. यस, थैंक यू. कहीं गलती से कोई अनम्यूट हो भी गए हैं तो हम उनको फिर से बताएंगे कि म्यूट हो जाएंगे करके, ताकि हम विचारों में ही लाएंगे कि आज हम करेंगे क्या. ये सब करने के लिए योगा है, मेडिटेशन है, मेडिटेशन के साथ बहुत से आयाम हमने देखे हुए हैं. जैसे हम
आयाम वर्ड सुना तो हमने बहुत सी बातें सुनी है। क्या क्या सुना है? व्यायाम। व्यायाम हम जानते हैं, तेजज्ञान फाउंडेशन में हमारे संस्थापक जो है सरश्री जी बताते हैं अलग अलग आयाम है। जैसे व्यायाम है, आहार आयाम है, आहार भी एक आयाम है, वो भी आयाम है, आहार आयाम है। ये करते करते प्राणायाम है। तो क्या है प्राणायाम? हम सुनते हैं वर्ड प्राणायाम, तो बहुत बार सुना है वर्ड। कंट्रोल ब्रीदिंग, जिस श्वास के ऊपर क्या है, श्वास आता है और बाहर आया ही नहीं तो प्राण गए। तो प्राण के जो प्राण है, ये श्वास हमारा प्राण है। जैसे डर जाते हैं तो कैसे कैसे सिचुएशन आ जाती है, अरे बाप रे, ब्रीदिंग जोर जोर से शुरू हो जाती है हमारी। तो ये जो है, ये जो श्वास है, हमारा प्राण जिसे कहते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं, उसे हम प्राणायाम कहते हैं। जैसे अनुलोम विलोम एक साइड से ले लो, दूसरी साइड से छोड़ दो। जैसे कपालभाति जैसे हम प्राणायाम भी करते हैं, अंदर पूरी सिस्टम जो है ब्लड प्रेशर से लेके अपने शुगर तक कंट्रोल करने के लिए कपालभाति की सिस्टम भी करते हैं। अलग अलग जो प्राणायाम भी बताए गए हैं, ये सब आयाम जो है, इससे और एक इंपॉर्टेंट आयाम सरशी जी ने कहा है, वो है विचार आयाम। अच्छा है ना शब्द विचार आयाम। जैसे कंट्रोल करके प्राणायाम किया जाता है, वैसे इन विचारों को कंट्रोल करके कितने तो विचार चलते रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक अनंत अनगिनत विचार चलते रहते हैं। इन विचारों को अगर हम प्राणायाम में जैसे श्वास को कंट्रोल करते हैं, उससे विचारों को हम कंट्रोल कर पाएंगे, विचारों को सजगता से देख पाएंगे, तो जीवन में ये सब योग मेडिटेशन बातें आसानी से आ जाएगी। नहीं तो सब मैकेनिकल हो जाएगा, बताया जाएगा कोई बुक पढ़ के, कोई सेमिनार करके, कोई टीवी पर देख के हम योगा 2 दिन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, लेकिन उससे हमारे अंदर के थॉट्स का क्या है? ये पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब जो विचार है, ये विचारों को किस तरीके से देखना चाहिए, क्या होता है जीवन में इस विचार से। सरशी जी ने तो इसके ऊपर बहुत बड़ा अच्छा बुक लिखा है, विचार नियम करके बुक है, विचार नियम करके ये बुक है। तो ये बुक का तो जरूर स्वाद ले सकते हैं, जरूर आनंद ले सकते हैं। आनंद की भाषा है हैप्पी थॉट। जैसे अभी शुरू में हमारे धन्यवाद है मिस्टर विजय जी जो है, उन्होंने कहा, नांदेड़ के तेजज्ञान फाउंडेशन के जो सदस्य है, उन्होंने कहा शुरू में हैप्पी थॉट्स वर्ड कहते ही पहले तो कैसे गुड राम कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, तो क्या है ये? वैसे ही आज तेजज्ञान फाउंडेशन में शुरू की स्टेज में बताया जाता है हैप्पी थॉट्स, आनंद लेना है, आनंद देना है। तो एक दूसरे को अगर इस वर्ड के साथ शुरुआत करते हैं, तो आगे जाने के बाद अलग अलग होते जाएंगे। तो ये विचारों के ऊपर कैसे देखना है, इस विचारों को किस तरीके से जाना है, इसलिए सरशी जी ने कुछ सूत्र भी बताए हैं। बस वो ज्ञान लेके ये आपके सामने ये प्रेजेंट करने के लिए, शेयर करने का मौका मिला है। तो अभी शुरू आप सभी को पहले तो धन्यवाद देते हैं, ताकि नांदेड़ है या नेशनल लेवल का सेमिनार है, आप सभी का अच्छा दर्शन लेने को मिल रहा है और आप सभी के साथ शेयर करना हो रहा है। अभी जस्ट कितनी आनंद की बात है, ये नांदेड़ और उसका पूरा कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट या आजरा तालुका जो गोवा के रोड पे है, वहां पे अभी पहुंच गया है, क्योंकि एक सेशन में अभी वहां पे 100 करोड़ का फैक्ट्री है वहां पे हमारा, वो फैक्ट्री में इनॉग्रेशन कर रहे थे, वहां पे फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, और वहां पे ये बताना हुआ कि जल्दी थोड़ा जाना है, क्योंकि नांदेड़ का साइंस कॉलेज है, वहां पे एक स्पीच देने का मौका है। तो तेजगुरु जो श्री जी है तेजज्ञान फाउंडेशन के, उन्होंने मौका दिया उन सभी के साथ शेयर करने का, इसीलिए जाना है, इसीलिए अभी आपके सामने ये मौका है, इसीलिए आप सभी को धन्यवाद। जो भी शुरू में बहुत अच्छा है, ये धन्यवाद देना इतना आनंद देता है। जैसे मेरे माताजी पिताजी आज यहाँ पे नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी वजह से कुछ जीन्स है, कुछ विचार है जो उन्होंने मुझे दिए हैं, कंट्रोल थॉट दिए है, उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे स्कूल कॉलेजेस के जो भी प्रोफेसर है, उन्होंने सभी ने जो कुछ भी ज्ञान दिया इंजीनियरिंग तक का, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो भी ज्ञान दिया, हैप्पी थॉट तेजज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक सरशी जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आप सभी जो यहाँ पे सुन रहे हैं, वो सभी प्रोफेसर, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रिंसिपल, आप सभी को भी प्रणाम करके ये सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो हम इस विचारों को पहले देखेंगे। जब ये विचारों के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, तो योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस आसान हो जाएगी। हम योगा समझ जाएंगे क्या है यम, उसको बाद में समझ सकते हैं जीवन में, लेकिन
जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिसको हम पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग बोल रहे हैं, है क्या ये? तो इसके कुछ नियम है, जो नेचर के नियम है, उस नियमों के साथ इस विचारों को हम पहले देखेंगे। क्या होता है, एक जीवन चलता है तो एक 5 स्तर है, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। ये 5 स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। ये 5 स्तर हर एक के जीवन में आते हैं। तो ये योगा और मेडिटेशन पहले शारीरिक और मानसिक स्तर के साथ बहुत अच्छी तरह से जोड़ा जाता है। जैसे शरीर के ऊपर कार्य करना है, जो कुदरत ने हमें दिया है शरीर में, अल्लाह, ईश्वर, जीसस जो भी हम कहते हैं, उसने अगर ये शरीर हमें दिया है, अभिव्यक्त कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस टंग के ऊपर तो हमारी टेस्ट है, तो इस शरीर को अभिव्यक्त अगर हम कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इसीलिए हम कुछ प्राणायाम करते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले ये बहुत जरूरी है, विचारों में आना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब हमारे विचारों में आना जरूरी है। तो एक विचार नियम का एक नियम जो है बताया जाता है, विश्व में कोई भी वस्तु भौतिक स्वरूप में निर्माण होने से पहले विचारों में पहले उसकी निर्मिती होती है। बहुत इंपॉर्टंट है, जगामध्ये कुठलीही स्वरूपात तयार होण्याच्या आधी विचारामध्ये ती तयार केली जाते। भौतिक स्तर पर कुछ भी तैयार होना है, उसके पहले विचारों में ये तैयार होता है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे आजकल डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल कार, ये सभी बातें हम सुन रहे हैं। किसी ने तो सोचा होगा ना पहले विचारों में कि आज डीजल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडिया में लोक संख्या ज्यादा हो रही है, तो अभी क्या करेंगे, ये पेट्रोल का और डीजल का शॉर्टेज हो जाएगा, तो व्हाट इज नेक्स्ट, क्या हो सकता है? तो कोई सोचा होगा, कई तो वर्ल्ड में सोचा होगा कि ये कार इलेक्ट्रिक भी बन सकती है। पहले विचारों में, थॉट प्रोसेस में आया, ये प्रोसेस में विचारों में आ गया, उसके बाद इसका भौतिक स्तर पर निर्माण हुआ। बहुत बार ऐसा होता है, कोई हम जॉब के बारे में अगर कोई सोचता है या घर लेने की बात लेते हैं, किसी को घर लेना है तो सामने आ गया घर लिया, ऐसा तो नहीं होता है। पहले सोचा जाता है, हाँ चलो अभी मुझे घर लेना है, मेरा आज 1 BHK है, चलो 2 BHK का घर लेना है मुझे, या मुझे बंगला खरीद करने हैं। तो ये पहले विचारों में शुरू हो जाता है, मेरी सैलरी कितनी, बिजनेस में पैसा कितना है, कितना हो सकता है, ये सब पहले विचारों में कैलकुलेशन जैसे आ जाता है, तो ये विचारों में आते ही भौतिक स्तर पर उसका निर्माण होना शुरू होता है। जब भी पेन पहले जब शाही में डुबो कर कोई तो लिखता था, तो जब पेन को शाही में डुबो कर लिखा, किसी के तो अंदर दिमाग में आया होगा ना, ये शाही को ये हर टाइम डुबो कर लिखना है, डुबो के लिखो, डुबो के टाक म्हणायची पूर्वी त्याला। तो किसी को तो दिमाग में पहले विचारों में आया होगा कि अरे इसको शाही को अंदर डाल सकते हैं क्या, तो फिर शाही के अंदर, पेन के अंदर वो शाही चाहिए। किसी ने सोचा होगा अरे शाही तो लिक्विड फॉर्म है, इसको कोई रिफिल फॉर्म में लाया जा सकता है क्या, विचारों में आया और फिर वो भौतिक स्वरूप में आ गया। तो जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी है हमारे पहले विचारों में आ जाता है, और विचारों के साथ साथ फिर वो भौतिक स्तर पर आ जाता है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, अभी लाइव हुआ है इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जो माहौल चल रहा है, कोविड का माहौल चल रहा है, सभी जगह हर जगह पे जाना होता है। 2 दिन कृपया खुद को म्यूट करते हैं, जहां पे भी चल रहा है प्लीज, विनती है आपसे। अभी यहाँ पे 2 दिन पहले पुणे से आना हुआ, सभी डरे हुए हैं, सभी जगह पे डर है, कोविड है, कोविड है, कोविड है, कोविड है, कोविड है, कितना कोविड बता रहे हैं, पेपर न्यूज में कोविड है, हर एक डिस्कशन में कोविड हो रहा है, ये विचारों में कितना चल रहा है सभी जगह पे। तो एग्जाम्पल के तौर बताते हैं, पहले 6-7 महीने की बात, पहले की बात है, मेरी माता जी का कुछ नेचुरल डेथ हुआ था, देहांत हुआ था एज की वजह से, और मिलने के लिए बहुत से लोग आए, उसमें से एक न्यूमोनिया इन्फेक्टेड थे, वो आए, और मेरे फादर जो है 81 एज के, ये बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं, और ये विचारों का इम्पैक्ट कितना होता है वो दिखाने के लिए बस शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे
मिलने के लिए वो न्यूमोनिया कोविड पेशेंट फादर को मिल के गई तो फादर इन्फेक्ट हो गए। ये वायरस है, जैसे सर्दी के कोई संपर्क में आता है तो आएगा, उस तरीके से वो भी इन्फेक्ट हो गए। फादर को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कोल्हापुर में रहता हूँ मैं एक्चुअली, तो कोल्हापुर में वहां पे इन्फेक्ट हुए तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको। अच्छा हॉस्पिटल है कोल्हापुर का। 2 दिन के बाद पिताजी ने खाना बंद कर दिया। सभी माहौल, सभी फोन चल रहे थे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। अंदर फिर खाना जैसे पिताजी ने बंद किया तो मेरा हॉस्पिटल में जाना हुआ। बहुत से लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया था, डॉक्टर्स ने भी, फिर भी पिताजी खाना नहीं खा रहे थे इसलिए अंदर गए। तो नेचुरली ये मैं भी इन्फेक्ट हो गया था। तो इन्फेक्ट होने के बाद मुझे भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, क्योंकि मैं आईसीयू में पिताजी के पास बैठा हुआ था। समझने वाली बात है, कॉन्फिडेंस और विचारों का इम्पैक्ट बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। पिताजी जब भी एडमिट हुए, उनके 4 दिन पहले उनके सभी टेस्ट हुए थे परफेक्ट, कोई तकलीफ नहीं थी बॉडी में। 81 ईयर्स के पिताजी। कृपया खुद को म्यूट करते हैं, धन्यवाद। तो पिताजी को कुछ नहीं हुआ था, बॉडी परफेक्ट। 81 ईयर के पिताजी हॉस्पिटलाइज हुए थे। हॉस्पिटल में होने के बाद वहां पे उनका डर शुरू हो गया, क्योंकि न्यूज में देखा हुआ था, पेपर्स में देखा तो हुआ था, सभी ने बताया था ये ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत सी बातें सुनी हुई थी उसके बारे में। एक इन्फेक्शन वायरल का था, वो हुआ था, उसके बारे में जो भी सुना हुआ था उसकी वजह से वो डर गए। और वहीं पे एक्चुअली मुझे हॉस्पिटलाइज जब करना पड़ा तो आई वॉज वेरी मच सीरियस। एक इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन की वजह से जो कुछ मेडिकल टेस्ट थे वो टेस्ट सीरियस आए थे मेरे, जैसे HRCT वगैरह कहते हैं, वो मेडिकल लैंग्वेज में सब कुछ क्रिटिकल थे। अभी यहां से चालू हो जाता है विचार का इम्पैक्ट। पिताजी अच्छे थे, इन्फेक्ट हुए, डरे हुए थे, 4 दिन के अंदर उनको वेंटिलेटर लगाना पड़ा। और प्रैक्टिकली मुझे मेडिकल लैंग्वेज के सब रिपोर्ट्स के हिसाब से, HRCT के हिसाब से आई वॉज वेरी मच सीरियस, मैं ज्यादा सीरियस था। लेकिन तेजज्ञान फाउंडेशन जो सिखावनी दी है सरसी जी ने, हैप्पी थॉट्स एक्चुअली जो समझाया गया है उस शिविर में, एक शिविर रहता है वहां पे 5 दिन का, वहां पे जो सिखावनियां मिली है, वो विचारों के ऊपर किस तरीके से देखना चाहिए वो बताया गया है। वो मेरे साथ में था, मेरे पास में वो था। मैंने सिंपली बता दिया कि हाँ ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में सब कुछ है, ये मुझे जो वो नीचे ऑक्सीजन ऊपर 5 लीटर 6 लीटर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद प्राणायाम करूंगा। मैंने वहां पे असिस्टेंट सपोर्टिंग स्टाफ को रिक्वेस्ट करके मैं निकाल दिए मेरे मास्क। 5 लीटर का ऑक्सीजन शुरू में लगाया हुआ था, मैंने सब प्राणायाम करते 2 घंटे तक प्राणायाम किया, कुछ नहीं, 97 के ऊपर लेवल थी, उसके बाद कुछ ऑक्सीजन भी नहीं लगाना पड़ा। और अंदर विचारों में था कि कुछ नहीं होगा। रादर मैं हॉस्पिटल में काउंसलिंग करना शुरू किया, क्या ये इन्फेक्शन है, इसको डरने की क्या बात है, इसको बहुत क्रिटिकल करके बताया गया है। ये इतना हैवॉक कर दिया, इतना हैवॉक कर दिया है कि बात छोटी इन्फेक्शन की है, डरे हुए 25 रुपए का प्रॉब्लम, 25 पैसे का प्रॉब्लम और 1 रुपए तक सीरियस करके रखा है सभी को। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। और उसके बाद विचारों में ये सब करते करते मुझे कुछ नहीं होगा, आई एम वेरी फाइन। ये रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, इट्स ओके, HRCT आ गया, ब्लड के रिपोर्ट आ गया, लेकिन मैं अंदर से परफेक्ट हूँ, मेरा प्राणायाम शुरू है, बाहर आ गया। लेकिन वही मेरे अच्छे पिताजी, जिनको मैं वंदन बार बार सुबह करके या आज के सेशन के लिए भी उनके रूम को नमस्कार करके बात कर रहा हूँ, वो खाली मेरी माँ नहीं है और कोरोना के बारे में सुना इसीलिए डरे हुए। कहाँ गए, विचारों में सिर डरा गया। अच्छे खासे पिताजी, कोई प्रॉब्लम मेडिकली नहीं थे, बस विचारों इतने डर गए, या ऐसा तो नहीं होगा, टीवी में ऐसा बताते लोग, इतना ऐसा 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 बता रहे, ऐसा होता है उसके साथ। एक डेथ हो गई, एक देह छोड़ना हुआ उनका। तो विचारों में पहले बहुत सी बातें आ जाती है, इसलिए दूसरा जो विचार नियम का इंपॉर्टेंट है, होश और जोश में किए गए विचार ही वास्तव में बदलते हैं। होश और जोश, जागृतपणे सजगपणे केलेले विचारच हे वास्तवमध्ये बदलतात। आपण विचार करताना सजगपणे नाही करते हम लोग। व्हाट वी आर डूइंग सिंस मॉर्निंग, हम उठते हैं, सजगता से है ही नहीं, होश में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम नहाते हैं, सभी नहाते हैं, एक्सेप्ट करके चलते हैं आगे। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी आर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, और नहाने के लिए अंदर बाथरूम में चले जाते हैं, तो यहाँ पे हाथ रख के हम खुद को पूछेंगे कि क्या हम जब भी नहा रहे हैं
तो नहा रहे हम लोग, आर वी टेकिंग बात ओनली, हम नहा ही रहे या वहां पे किचन की बातें हो रही है, ब्रेकफास्ट की सोच है, पेपर पढ़ने की सोच है, बाहर ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बैंक जाना है, ये सब अंदर चल रहा है। तो ये विचारों का इम्पैक्ट कितना होता है हमारे जीवन पर, होश और जोश में किए गए विचार वास्तव में बदलते हैं। तो हम अपनी बॉडी को परफेक्ट करना है, नहाते हुए प्यार से प्रेम के साथ योगा करना है, प्राणायाम करना है, योगासन करना है, भागना है, हम स्पोर्ट्स के कॉलेजेस में है, वो सब एक्सरसाइज वगैरह सब प्रैक्टिकल लेवल पे करना है। लेकिन जिस बॉडी से ये करना है, जिस शरीर से, जिस देह से ये सब कुछ करना है, क्या उस शरीर को हम प्रेम से हाथ लगाते हुए, यस थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मेरे प्यारे शरीर, मेरे प्यारे मन आणि शरीराचं यंत्र आहे, आतमध्ये मन आहे, एक शरीर आहे, हे यंत्र आहे, मनो शरीर यंत्र, मेरे प्यारे मनो शरीर यंत्र, बहुत धन्यवाद, तू आज जिंदा उठ गया है। क्या ये धन्यवाद की फीलिंग अभी इस वक्त भी हम ले सकते हैं? कोई भी मेरी उम्र हो, आज मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, स्कूल में जा रहा हूँ, प्रजासत्ताक दिन के लिए अपने देश को सैल्यूट करने के लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जो भी हूँ, तो आज ये शरीर मेरा जिंदा उठ गया है, ये थॉट भी अगर अंदर आ जाएगा तो ये शरीर कितना बेस्ट अभिव्यक्त हो जाएगा, सभी बीमारी अंदर की ऐसे ही निकल जाएगी। शरीर अपने आप करेक्ट करता है, कोई अगर यहाँ पे वुंड हो गया, जखम झाली कुठली, तो क्या होता है, अपने आप करेक्ट करता है ना, क्लॉटिंग सिस्टम है ना अंदर। एका शरीरामध्ये भाकरी खाली है, इसके अंदर हमने चपाती रोटी डाली है, तो वो शरीर का ब्लड में, ग्लूकोज में हीमोग्लोबिन हो जाता है। कैसी बढ़िया सिस्टम है कुदरत ने बनाई है हमारे लिए। तो ये सिस्टम, हमारा होश, विचारों में होश बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और होश और जोश के साथ मेरा शरीर अभी काम के लिए जा रहा है, मेरा ये शरीर व्यायाम करने के लिए जा रहा है, मेरा शरीर ये अभी प्राणायाम करेगा, मेरा शरीर करेगा। नहीं तो होगा क्या, कुछ सुने सुनाई बातों से मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद कर दी, बस आंखें बंद कर दी, उससे क्या मेडिटेशन हो जाएगा? 50 विचार अंदर आना शुरू हो जाएंगे, हजारों थॉट्स अंदर चले जाएंगे, अरे ये हो गया, मेरे जीवन के पास के कुछ टेंशन्स या फ्यूचर के कुछ चिंताएं अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो शुरू के स्टेज में होश के साथ हम अगर आंखें बंद करके बैठना शुरू करेंगे, पहले बताएंगे सुबह उठते ही, हे मेरे प्यारे शरीर, मेरे शरीर, मन और शरीर का यंत्र, चलो मैं अभी मेडिटेशन के लिए 5 मिनट 2 मिनट के लिए बैठने जा रही हूँ या बैठने जा रहा हूँ। मेडिटेशन बैठे तो क्या करेंगे, कैसा करना पता नहीं, मेडिटेशन से क्या ब्रह्म मिलेगा, मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, वो सब बात की बातें हैं। पहली छोटी सी स्टेप में मुझे आंखें बंद करके रुक कहते हैं, कहीं तो रुक जाइए। इतने सब कुछ पहले पढ़ाई करनी थी, स्कूल कॉलेजेस में जाना था, उसमें परसेंटेज लाने थे, फिर जॉब के लिए और कुछ पीएचडी डॉक्टरेट भी करना था, उसके बाद जॉब हो गया, उसके बाद एक ऐसी शादी करनी थी, एक बीबी या एक हस्बैंड चाहिए था हमें, वो भी आ गया। उसके बाद अभी बच्चे चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, उसके ऊपर मारामारी हो गई, बच्चे भी हो गए। अभी बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, इंग्लिश में डाले, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत, कहाँ पे डाले, उसके ऊपर मारामारी शुरू हो गई। चलो बच्चों को कहीं पे डाल दिया, उनको भी बड़ा कर दिया, अभी उनकी शादी, उनका करियर, फिर उनके बच्चे, झुला झुलाओ, पाळणा हलवा, आणि हा पाळणा हलवून झाला की शेवटी सब कुछ जीवन गया, लेकिन मजा नहीं आया जीवन में, शरीर तो थक गया, हम बूढ़े हो गए और फिर परेशानी। तो होश के साथ, जागृति के साथ खुद को पहले बताते हैं कि मेरा होश कितना है, गिव योर 100% फॉर 100% दीजिए। नहा रहे नहा लीजिए, खाना खा रहे तो खाते हैं ना, हम खाना ही खाते हैं, चलो अभी खाना खा रहे हैं, और जिस खाने की वजह से इतना सब कुछ कर रहा है। तुकाराम महाराजांचं एक वाक्य आहे, विधभर पोट दंगा किती करते, विधभर पोट, लेकिन उन्होंने वीत कहा गया, इतना ही है, लेकिन वो उसके डेप्थ के बारे में क्या क्या अंदर जाता है, कितना खोल है वो अंदर, कितना डेप्थ है, उसको नहीं बताया उन्होंने। तो 100% अभी जैसे अभी हम ये सेशन में हैं, खुद को अगर हम ये सेशन में अभी पाते हैं, तो ये होश और जोश में मेरे विचार हो रहे हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा वास्तव में।
लेकिन अभी हम सेशन में बैठे हैं क्योंकि अभी हमें पकड़ के बिठाया हुआ है, हमें ऑनलाइन लाना ही है, नहीं तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरे स्कूल को मेरे स्टूडेंट है अगर सामने तो मुझे मार्क लेने हैं, इसलिए मैं बैठा हूं। तो बस वो हो जाएगा, सब कुछ जीवन में होता ही रहता है। लेकिन व्हाट आई एम गेटिंग एग्जैक्टली इन माय लाइफ, मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है, जोश के साथ अगर विचार करते हैं तो वास्तव में बदल जाते हैं, वास्तव में बदल जाते हैं। एडिसन जैसे जो साइंटिस्ट थे, बाथरूम में बैठे, बस वहां पे उनको सोच चल रही है, क्योंकि 100% होश और जोश के साथ एक थॉट्स को लेके जा रहे हैं। मिरेकल्स आ गए, आइंस्टाइन जैसे है, एक थॉट को लेके बैठे लेकिन होश के साथ और जोश के साथ, मुझे ये इसके ऊपर रिसर्च करनी है, इसको ढूंढना है मुझे, बैठे शांति से, उसके ऊपर शांति से सोच कर, इट्स ए मेडिटेशन। तो उसकी शुरुआत कैसे है? आंखें बंद करो, 2 मिनट देखो, मेरे विचार तो देखो, कम से कम पास में जो जो कुछ हुआ है बचपन से लेके वो सब मेरे सामने थॉट टीवी के नीचे कैसे लाई जाती है वैसे विचार आ। तो शुरू में क्या कर सकते हैं मेडिटेशन में? हाँ चलो, एक थॉट आ गया, चलो शेखर फडणीस तुम्हारा ऐसा ऐसा ऑफिस का ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है चलो जाओ भाई, थैंक यू, थॉट को छोड़ दिया। दूसरा थॉट आ गया, चलो जाओ। कौन सी मीटिंग है अटेंड? उन थॉट को अगर अभी आंखें खुली है लेकिन अगर हम देखना शुरू करेंगे तो अच्छा ये थॉट आ गया, ओके फाइन, यहाँ पे आ गया, चल निकल जा, आ गया निकल जा। इससे क्या हो जाएगा? होश और जोश के साथ अगर हम थॉट्स को मेडिटेशन में देखना शुरू, ये आदत ही लगानी है, आंखें बंद करके शुरू के स्टेज में मेरी थॉट्स को पहले कम से कम देख लेता हूँ, देख लेती हूँ। जैसे थॉट्स को देखने की प्रोसेस पहले शुरू हो जाएगी, कम नहीं हो रहे हो उसको जाने दो आगे, मुझे थोड़ी फाइट करना है, कोई थॉट्स के साथ विचारों के साथ मुझे फाइट ही नहीं करनी है। दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब चलो पूनम का चांदी देखो, अमावस तो नहीं देखना है, दिस इज नॉट लाइक पॉजिटिव थिंकिंग। कृपया खुद को म्यूट करते हैं, कोई म्यूट कर सकते हैं अपने आप को? यस बोरीकर सर, मध्ये आवाज का यायलेत, बंद करा ना, इतकं चांगलं सेशन चालू असताना. धन्यवाद सर, थँक्यू व्हेरी मच, फार बरं वाटलं, थँक्यू। तर हा सगळा महत्वाचा विचार आहे। मग आता आपण ये होश और जोश जो है तो इसके लिए गया कहाँ पे, ये हुआ क्या हमारे जीवन में, एग्जैक्टली क्या हुआ? हम जब क्रेडल में थे, पालण्यामध्ये आपण होतो, पालने में जब थे, 1 साल 1.5 साल के हम थे, उस वक्त सिचुएशन क्या थी? कोई मैं कौन हूँ, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरी पोस्ट है, मेरी बीबी ऐसी, मेरे बेटे कहाँ पे, लंदन अमेरिका जापान अमुक तमुक, कुछ नहीं था। मेरे पास कितना पैसा है, कितने बंगले, कितने गाड़ियां, कुछ नहीं था। मेरी मामी क्या करती है, मेरे काका के साथ 7-12 प्रॉपर्टी का क्या चल रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम जब पालने में थे, शांति के साथ मस्त उस आनंद अवस्था में थे। जो सामने है खेलते थे, देखते थे, आराम से आनंद ले रहे थे। ये पृथ्वी क्या है, हम आए बॉडी लेके, तो अभी क्या ये सब आश्चर्य रहता था ना, मुलांच्या डोळ्यासमोर कशी ते आश्चर्य असतात ना, कहाँ गया वो गया कहाँ? हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा होश हमने खो लिया। कैसे खो दिया? किसी ने तो हमारे क्रेडल के पास, पालने के पास में, पाळण्याची शेजारी सांगायला सुरुवात केली, हे बघ तुझ्याकडे ना 2 घरं आणि 4 गाड्या नसतील तर तू होपलेस, बोलायला सुरुवात केली शेजारी पाळण्याच्या। कोणीतरी पाळण्याच्या शेजारी सांगितलं, जग फार वाईट आहे, या जगामध्ये ना सगळीकडे बाबा करप्शन आहे, सगळी माणसं वाईट आहेत, सगळीकडे कोरोनाने मरतात, अशा डिस्कशन त्या पाळण्या शेजारी सुरू झाल्या। अभी क्या होने वाला है, जब उस क्रेडल के पास ये दुनिया बुरी है, ये दुनिया में ऐसा ही सब कुछ चलता है, इस तरीके से अगर स्टेटमेंट्स वो बच्चे के कान में जा रहे हैं, इसका अवेयरनेस किसी ने नहीं लिया। होश के साथ, जोश के साथ विचार हमने किए नहीं और वाणी में भी लाए वैसे। माँ है, पिताजी है, दादाजी है, पड़ोसी है, भाई है, उन्होंने क्या किया, वो क्रेडल के पास में ये सब डिस्कशंस करके ये हम भूल गए, क्या भूल, अभिमन्यु जो था उसने पेट में सुना हुआ था कि चक्रव्यूह का भेद करना है, और वो बाहर आने के बाद उसने चक्रव्यूह का भेद किया। तो स्पिरिचुअलिटी क्या 60 साल के बाद थोड़ी शुरू हो जाती है कि चलो अभी जीवन हो गया, अभी क्या करना है, चलो ज्ञानेश्वरी का थोड़ा पारायण करते हैं, राम नाम का जप करते, 60 साल के बाद में राम राम कहते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, जीसस करते हैं, या इला अल्लाह,
हे गॉड प्लीज फॉरगिव देम, वो बोलते उस वक्त 16 साल के ज्ञानेश्वर अगर ज्ञानेश्वरी लिखते हैं तो ये बातें हमें कहां से लानी चाहिए? तो जब ये सब प्रोग्रामिंग उस क्रैडल के पास हो रहा था, उस वक्त हमें होश नहीं था हमारे विचारों में, और वो हम अपने बच्चों के ऊपर थोप रहे थे, हमारे ऊपर वो थोपा जा रहा था, जाने अनजाने में थोपा जा रहा था सब कुछ। तो उसकी वजह से हमारी वृत्ति वैसी बन गई। बचपन से आपको बोला गया, अरे बाप रे गाड़ी नहीं सीखनी है, तो गाड़ी देखी तो डर आ गया बीच में, एग्जाम के वक्त उस डर का माहौल सामने देखा। कुछ विचार दिए गए कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ टेंशन विचार अच्छा करने के लिए दिए कुदरत ने हमें, लेकिन हमने क्या किया, वो वृत्ति बना दी हमने बेहोश होके। दुनिया बोल रही है ना कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स है, तो हम बोलना शुरू कर दे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। किसी ने कुछ उसके ऊपर होश के साथ जोश के साथ मनन किया नहीं, तो विचार वास्तव में क्या, कुछ नहीं होने वाला है मेरे शरीर को, ये चला गया। और एक कदम डालते हुए भी हम डर गए और हमारी वृत्ति बन गई, डर की वृत्ति। पैसा कैसा होगा, मेरे बच्चे संभाले कि नहीं, आगे जाके वृद्धाश्रम में तो जाएंगे। तो हम कमा रहे हैं ये थॉट के साथ, और वो कैसा गया, सोसाइटी, घर वाले, इन्होंने ये सब डाल दिया और हम होश खो बैठे हैं विचारों में और बेहोश बन चुके हैं। सिंपल एग्जांपल की, थैंक यू म्यूट करने के लिए फिर एक बार धन्यवाद। तो ये सब के लिए फिर बाहर तो आना है अभी, चलो अभी गया, अभी बहुत से प्रोग्राम्स अंदर गए हैं, हमारी वृत्तियां बन चुकी है, हम ना चाहते हुए भी बहुत सी बातें हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंतरात्मा में गई है। उसके लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अलग सा सब्जेक्ट है, जोसेफ मर्सी का जो बुक है वैसे उसके अंदर बहुत से, मैया पुष्पता ठक्कर जो है मराठी में अनुवाद किया है उन्होंने, उसके ऊपर भी बहुत सा कुछ सुन सकते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अंदर अभी गया है सब कुछ, अभी क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट मारना है हमको। कंप्यूटर के और मोबाइल के ऊपर तो हम बार बार व्हाट्सएप में कंटिन्यूस रहते हैं, बार बार छोड़ा ही नहीं जाता आजकल व्हाट्सएप को, तो 2-2, 5-5 मिनट में सभी लोग हाथ में लेके बैठे हुए हैं। तो उसको डिलीट मारने की प्रैक्टिस हमने होश और जोश के साथ करनी है। एक बार ये सोच सकते हैं, चलो मैं हर 1 घंटे में व्हाट्सएप पर 10 मिनट 15 मिनट देखने वाला हूं जोश के साथ। क्या नहीं हो सकता है, बुद्धि दी है हमें कुदरत ने, अल्लाह ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, वो सद्बुद्धि को कन्वर्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। विचारों के ऊपर प्राणायाम से जैसे प्राण को कंट्रोल करना है, सांस को कंट्रोल करना है, आहार क्या लेना है जैसे आहारायाम को कंट्रोल कर सकते हैं, कितने देने हैं, मेरी कौन सी बीमारी और बॉडी को क्या व्यायाम देने है सोच के दे सकते हैं, वैसे विचारों के भी हम सोच के, देख के, होश के साथ उस विचारों को हम आयाम दे सकते हैं। और डेफिनेटली ये बुद्धि का उपयोग हमें करना है। अगर हम उस बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो मन जो है ना, तो पूरा रामदास स्वामी जो है उन्होंने तो मन के ऊपर कितने मनाचे श्लोक, कुछ ये मन भागता रहता है, मुझे ये करना है, रजोगुण इधर उधर उधर उधर, तमोगुणी सो ही जाता है, मुझे जाने दो, कुछ करना ही नहीं। और सत्वगुण अगर आ गया तो अहंकार के साथ, मुझे कितना ज्ञान है, कितना सब कुछ मेरे पास है। होश के साथ देख के इसको फॉर्मेट करना है इस अंतर मन में जो गलत। तो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर मेरे बॉडी से मुझे योगा और प्राणायाम के लिए आगे जाना है तो प्री प्लानिंग क्या होनी चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। समझो रात में मैं सोया हुआ, बहुत बातें गई, अरे ये नहीं चाहिए था, मेरे जीन्स से पहले तो आया है, सोसाइटी में पड़ोसन ने इतना कुछ बताया हुआ है, इसको मुझे फॉर्मेट करना है। लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सरशी जो बता दे पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे अनुभव के साथ, पूरे भक्ति के साथ जो हमने लेना हुआ है ना, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। एक बूंद में, सिर्फ एक बूंद, सागर मिला है हमें सरशी जी से, हम एक बूंद जो हम आपके पास पहुंचा रहे सिर्फ। तो रात को हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आंखें बंद करके वहां पे शांति से, जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है, मेरा इंसल्ट किया है, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, ऐसे विचारों में आया है मेरे, फॉरगिव देम। चलो मैं संत बनता हूं, मैं गुरु नानक बनता हूं और सभी को बोल देता हूं चलो जाओ, आपको मैंने माफ कर दिया। क्या हम संत बन सकते हैं? यस, आज से शुरू कर सकते हैं। बातों बातों में ऐसा हो जाएगा कि छोटी बड़ी इतनी सी अनबन हुई है, कितने लोगों को अंदर लेके बैठे विचारों में, उसकी वजह से
ब्लड प्रेशर, शुगर प्रॉब्लम, पेट के प्रॉब्लेम कितना तो बढ़ा हुआ है. आज शांत 2 मिनिटं डोळे बंद करू. ज्याने मला त्रास दिलाय असं वाटतंय, मी माझं मन मोठं करते आहे आणि त्यांना सगळ्यांना माफ करून टाकते, कारण मी संत झालोय आज, असं स्वतःला सांगूया. चलो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जाने अनजाने मैंने किसी को तो तकलीफ दी है. मी माझ्या स्वार्थासाठी, प्रमोशनसाठी, पगारासाठी, माझ्या वस्तूसाठी, फिजिकल काही अट्रॅक्शन्स आहेत त्याच्यासाठी मैंने उनको तकलीफ दी है, तो मन ही मन में उनसे क्षमा मांग सकते हैं. अहंकार क्षमा नहीं मांगने देता है. विचारों में अगर बचपन से अहंकार आया हो ना, अरे मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं हूं इसकी वजह से, ये फैक्ट्री हाजरा का फैक्ट्री कुछ नहीं था वहां पे, शेखर फडणवीस आया और उसने वो फैक्ट्री रूरल एरिया में चालू की है, इतनी बड़ी फैक्ट्री, ये सब अहंकार है, वो क्षमा नहीं मांगने देता है. तो आज विचारों में होश के साथ एक लाइन आंखें बंद करके रात को सोते हुए, जिनको मेरी वजह से तकलीफ हुए, चलो अभी करते हैं ना, रात की प्रैक्टिस अभी क्यों नहीं करेंगे. दिस इज मेडिटेशन, बिगिनिंग है. मेडिटेशन की पहली स्टेप्स है कि तो क्लीन करने की प्रोसेस में जहां पे हम सभी एक, सभी की आंखें बंद है, कोई अनुमान नहीं लगा रहे हैं हम मनी मन में, कोई शिकायतें नहीं, किसी के बारे में कुछ सोच नहीं रहे, सही गलत सब कुछ साइड में छोड़ते हैं. कृपया पूरे ईमानदारी के है, मेरे विचार दिख रहे हैं मुझे, आज सुबह से लेके या कल या लास्ट हफ्ते में किसी ने मुझे कुछ बोला है, उनकी वजह से मुझे तकलीफ हुई है, कुछ सेंटेन्स, कुछ वर्ड की वजह से मैं परेशान हूं, मी दुःखी आहे, मला कोणाचं तरी बोलणं लागलंय, कोई शादी में किसी ने बोला है, ऑफिस में, बिजनेस में कहीं गलत बातें किसी ने मेरे साथ की है, सास, बहू, बेटे. तो चलो अभी अंदर ही अंदर संत बनते हैं. नांदेड़ में है तो चलो गुरु नानक बनते हैं, गजानन महाराज बनते हैं, हम साईं बाबा बनते हैं, संत मीरा बनते हैं, और मन ही मन में सभी को एक बार बोलते चलो आपको हमने माफ कर दिया, क्योंकि मैं संत हूं, मेरे थिंकिंग पॉजिटिव है, इसीलिए मैं निगेटिव थॉट्स को अंदर से निकाल रही हूं. जाओ, आप सभी को हमने माफ किया, क्षमा कर देते हैं, बाय हार्ट कर दीजिए, देखिए मजा आ जाएगा. क्षमा कर दीजिए. जो भी अभी म्यूट में है, आवाज आ रही है, चलो उनको भी क्षमा करते हैं, वो म्यूट हो जाएंगे. कोई लेवल नहीं, जो भी आवाज अभी बीच में आई, कोई शिकायत नहीं अभी, चलो सभी को क्षमा कर दिया हमने. कोई अभी इस वक्त कोई शिकायत नहीं, स्वीकार है सब, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड. और अंदर से अगर लग रहा है कि मेरी वजह से कुछ तो, मेरी पोस्ट, मेरा पद, मी वडिलांच्या पोस्ट हो रहा है, मी मोठ्या भावाच्या, मोठ्या बहिणीच्या पोस्ट हो रहा है, उसकी वजह से मैंने किसी के साथ गलत बात की है, मेरे स्वार्थ, मेरी महत्वाकांक्षा के लिए किसी को मैंने दबाया हुआ है, ऐसा अंदर से मुझे लग रहा है, तो दिल बड़ा करके मैं मन ही मन में उनसे माफी मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ. माफी मांगते हैं. 1 रुपया अगर सब पास में रखा तो मोहम्मद पैगंबर जी को तकलीफ होती थी, हमारे पास तो बहुत कुछ है, क्यों तकलीफ में है हम. क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्लीन हो जाते हैं अंदर से, पूरा फॉर्मेट करते हैं सभी गलत विचारों को. धन्यवाद. सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं. कुछ क्षण सिर्फ हमने क्षमा मांगी और क्षमा की, अंदर से खाली होना शुरू हो गया. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेट. ये डिलीट करने की प्रोसेस है. अंदर जो भी थॉट्स हुए, क्योंकि हम छोड़ते नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हम. ये मेरा है, मैं कैसे छोड़ू. सरसी कहते हैं जो तेरा है लौट के तेरे पास आएगा, और जो तेरा नहीं वो चला जाएगा. कुछ भी करो, तेरा नहीं वो चला जाएगा. कुदरत का अपना कानून है, कुदरत काम करती रहती है, और जो तेरा जो है लौट के वापस आएगा. तो जब मौन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो कम से कम छोड़ने की प्रोसेस है ये. तो छोड़ना शुरू हो जाता है, तो होश के विचार सिर्फ रहते हैं, और ये गलत जो नकारात्मक विचार है अपने आप डिलीट होना शुरू होते हैं. और एक बात कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, एक नियम है, जो चाहिए ना उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करो, जो नहीं चाहिए उसे दुर्लक्षित करो.
चाहिए उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करो। हम क्या कहते हैं, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, कुदरत नहीं वर्ड को नहीं समझती है। सबकॉन्शियस को हमें प्रोग्राम देना है, गलत प्रोग्राम को अगर हटाना है तो नए प्रोग्राम को डालने के लिए क्या कहना चाहिए, फिर मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, सर्दी नहीं चाहिए, खांसी नहीं, घसा नको टाकू मला, दुखायला नको, नहीं ना 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 ना, ये नहीं करेंगे। कुदरत को क्या क्लियरली इंडिकेशन, क्लियरली कुदरत को बताएंगे मुझे स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य मतलब शरीर खाली फिट नहीं रहता है, शरीर के साथ साथ हमारे थॉट्स भी क्लियर हो जाते हैं। व्हाट इज योग? जो शुरू में हमने योग की बात की, क्या है योग? ये शरीर, मन और आत्मा, इसके बारे में समझने की। तो जब हम ये सब करना शुरू करते हैं तो हम लोग, नहीं तो शेख चिल्ली के विचार, बैठे पेड़ पर 10 साल पहले उन्होंने 200 रुपए की साड़ी मुझे शादी में दी थी, मैं आज तक उनको नहीं माफ की, अभी नहीं करने वाली हूं माफ। 10 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने तो हमें एक थप्पड़ मारा है, और 10 साल तक वो चला गया या चली गई, और 10 साल हम उसको अंदर रखे हुए विचारों में, और बार बार खुद को परेशान कर रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ज्यादा जहरीला कौन, जिसने मारा वो या खुद के साथ हम ये 10 साल से अन्याय कर रहे हैं हम? हमारे विचारों में 10 साल से हम ये लेके बैठे हुए, क्षमा ही नहीं की, छोड़ा ही नहीं, तो फिर होश नहीं है, जागृति नहीं है हमारे विचारों में, तो क्या योगा? ये प्रोसेस है, जो चाहिए उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करो। एक बहुत अच्छी बात है, शशि जी एक स्टोरी बताते हैं। एक गुरुजी थे, वो गुरुजी ने क्या किया, वो गुरुजी ने अपने शिष्य को बताया कि चलो एक रूम में जाओ, और रूम में अंदर जाके अब बात करो। क्या बात करो? मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, बताओ, खुद को बता दे रहा हूं। शिष्य अच्छा था, शायद पुराने जमाने का था, गुरु ने या टीचर्स ने कुछ बताया तो इमीडिएटली 100% सुनना है, इस तरीके का शिष्य था। वो गया रूम में और खुद को बताना शुरू कर दिया, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं। एक दिन पूरा मैं बैल हूं, मैं बैल हूं शुरू कर दिया उसने। फिर गुरुजी ने शाम को बोला, एक ऐसे खिड़की रहती है ना, विंडो, विंडो के पास में से गज रॉड रहते, उसको बोला वो रॉड में से बाहर आ जाओ। तो उसने क्या किया, वो रॉड में से इजीली बाहर आ गए। गुरुजी ने बोला, अरे वाह वाह, वेरी गुड। दूसरे दिन फिर बोला, जाओ रूम के अंदर, तो मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं। और शाम को बोला, आ जाओ वो गज के बाहर, बाहर आ गया। तीसरे दिन फिर वही एक्सरसाइज, अंदर जाओ, मैं बैल हूं बोलो, वो गया अंदर, और वहां से बाहर आने के लिए बोला, गज से आ जाओ। तो तीसरे दिन वो बोला, गुरुजी मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। वो बोले, क्यों नहीं आते हो? तो उसने बोला कि गुरुजी मेरे सींग जो है ना उसे अटक रहे, ते शिंग त्या गजाला अटकायला लागली होती। कहां से आ गए ये सिंग? प्रैक्टिकल लेवल पे आए थे? बिल्कुल नहीं। विचारों में फोकस करके बार बार खुद को बताया, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं। आ गए सिंह विचारों में और वो अटकना शुरू कर दे। अच्छा खासा रास्ता उसके लिए बंद हो गया। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी है, विचारों जो चाहिए उसके ऊपर लक्ष्य नहीं केंद्रित करते। बच्चों को बोलते, अरे दार आपटू नकोस ना, जोर से मत आप। ये हम केंद्रित किसके ऊपर कर रहे हैं? दरवाजा आपटू नकोस, जोर से लगाना नहीं, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फोकस क्या होना चाहिए? धीरे लगाओ, दरवाजा धीरे से लगाओ। अरे शिव्या देऊ नकोस, गालियां मत दो ना। इस तरीके से बच्चों से बात करते हैं हमारे। केंद्रित कैसे करना है हमारे फोकस को? अच्छी बातें करो, वाणी है, जीवा दी है, तो जीवा से कैसी बात होनी चाहिए? कुदरत ने, अल्लाह ने, खुदा ने हमें जीवित किस तरीके से, वो भजन आना चाहिए, वो अजान आनी चाहिए, इसलिए दिए है जीवा। इस तरीके से अगर उसे कन्वर्ट किया जाएगा तो पॉजिटिव फोकस विचारों में आना शुरू हो जाएगा। जो चाहिए उसकी ऑर्डर सिर्फ देना है, नहीं चाहिए कि ऑर्डर नहीं। रात को जैसे क्षमा साधना करने के बाद सो जाते हैं ना हम, तो सबकॉन्शियस में हमें क्या डालना है? समझो मुझे कोई यंग प्रोफेसर या स्टूडेंट्स है, मेरा अच्छा करियर हो, सबकॉन्शियस को रात को प्रोग्राम डालना है, मेरा करियर अच्छा हो, मेरे बेटों का करियर अच्छा हो, उनके फैमिली रिलेशन संवाद खुद के साथ बहुत अच्छा हो। जो चाहिए ना उसको ऐड करना है हमें। वो ऐड कर दिया तो जिसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करते हैं वो जीवन में आता है।
नहीं चाहिए उसके ऊपर हमें लक्ष्य नहीं करना है। इसीलिए हमारे थॉट्स में, हमारे सोच में ये बहुत जरूरी है, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। कुदरत साथ देने के लिए बैठी है। एक एग्जाम्पल जस्ट ऐसे याद आ गया। हमने सभी ने कृष्ण और अर्जुन सभी जानते हैं, और वो कथा भी सुनी हुई है कि कृष्ण ने बताया कि अर्जुन को वो धनुष्य बाण ले लो, ऊपर वो मासा जो है, मछली जो है, उसकी आंख जो है, तो फिश, वो मछली, उसकी आंख फोड़नी है, और क्या करना है, नीचे देख के, पानी, नीचे पानी है, उसमें देख के वो मछली की आंख फोड़नी है। चलो शुरू हो जाओ। आज अर्जुन को बोला। अर्जुन ने एक सवाल पूछा कृष्ण से, बोले भगवान मुझे बताइए कि ये धनुष्य बाण भी मुझे ही लेना है, ये खींचना भी मुझे ही है, मछली की तरफ देखना भी मुझे, पानी से आगे देखना भी मुझे ही है, वो बाण को भी, तीर को भी चलाना मुझे ही है। ये सब कुछ अगर मुझे करना है तो कृष्ण भगवान आप क्या कर रहे हो फिर? कृष्ण भगवान हंसे और उन्होंने कहा, जिस पानी में देख के तुम मछली की आंख फोड़ रहे हो ना, वो पानी को स्थिर रखने का कार्य जो है वो मैं करता हूं। ते पाणी स्थिर ठेवायचं काम मी करतो, आणि ते स्थिर ठेवायचे जे पाणी आहे ना, त्या पाण्यात ज्या काही लाटा येतात, जो लहरें आ जाती है, हम अपने गलत विचार डालते हैं और उसकी वजह से हम ये सब तकलीफें भोगते हैं। इसीलिए उन विचारों को फॉर्मेट करना है, उन विचारों को डिलीट करना है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रामदास स्वामी जो थे, आपने सुना होगा सभी ने, रामदास स्वामी की बात है। वो भिक्षा मांगने के लिए एक जगह पे चले गए थे, तो एक लेडी ने उनको बोला, आप मुझे कुछ तो एडवाइस करिए, उपदेश कर दीजिए, तब मैं आपको कुछ तो दे दूंगी। वो कमंडलू जो रहता है वो लेके गए हुए थे। तो वो लेडी बोली कि आप मुझे पहले उपदेश करो, बाद में मैं कुछ तो आपको दे दूंगी। वो बोले ठीक है, मैं सुबह आता हूँ दूसरे दिन, आप फिर ऐसा कर दीजिए। चले गए। फिर रामदास स्वामी जो थे, उन दूसरे दिन आ गए। तो आने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो कमंडलू था हाथ में लिया हुआ, उसमें पूरा कचरा, गोबर सब कुछ डाला, और वो लेडी को बोले अभी दे दो उसके अंदर, मुझे कुछ तो भिक्षा दे दो उसके अंदर। तो वो लेडी ने क्या कहा, अरे पहले उस कमंडलू में जो गोबर और कचरा भरा है उसको तो खाली करो, तब मैं कुछ तो डालूंगी ना। रामदास स्वामी ने कहा, बस यही, ये जो कमंडलू है, इसके अंदर जो कुछ कचरा डाला हुआ है उसको पहले खाली करो, तो अंदर कुछ तो अच्छा जा पाएगा। तो बस यही जीवन में, इस विचारों में हमें फोकस करना है, क्योंकि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे हमें दिखती है। बहुत अच्छा ये अगला ये मंत्र सेंटेंस जो है, ये विचार है, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे हमें दिखती है, बल्कि वैसी है जैसे हमारे विचार है। दुनिया वैसी नाही आहे जैसे हमें दिसते, माझ्याच नशिबाला काही माणसं आली, मलाच का असं झालं, की लोक मला परत एकदा, आपण पाळण्यामधून आपण हे काही नव्हतं, हे सगळं क्रिएट झाल्या, वृत्ती तयार झाल्या, त्याच्यावरती सगळं ते लिहिलं गेलं या पाटीवर, सब कुछ लिखा गया उस लेटर के बाद आज जो कुछ है हम बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बस जानकर ये जैसे फैक्ट्री शुरू करनी थी, 100 करोड़ की प्लांट है, 1000 के आसपास वर्कर है, और 2 गारमेंट फैक्ट्री जो है, वो गारमेंट फैक्ट्री में 500 के आसपास वुमेन्स काम करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए सब काम होता है ये। तो यहाँ पे ये पूरा रूरल एरिया है। आपने कभी आओगे तो सभी के लिए इनविटेशन है आपके लिए, ऑन द वे टू गोवा, कोल्हापुर से गोवा जाने के अंबोली का एक घाट बोलते हैं, अंबोली से पहले ये अजरा आता है, अजरा। तो वहां पे एक रूरल एरिया है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। तो मुझे सभी ने कहा पहले, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई लेबर नहीं, इंडस्ट्रियल कल्चर नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो फिर कुछ साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, तो दिमाग में आ गया, सब लोग बोल रहे हैं नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, दुनिया बोल रही है नहीं, लेकिन विचारों में आया, इधर का लेबर तो मुंबई में काम कर रहा है, इधर का एक ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान है, आदमी है, वर्कर है, वो बाहर काम कर रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छी इंडस्ट्री चल सकती है, ये ज्यादा चल सकता है। तो शुरुआत की इंडस्ट्री के लिए, वहां पे 2007 के आसपास है, सब लोगों से डिस्कस करके, यहाँ के वर्कर, यहाँ के लोगों से बात करके एक स्पिनिंग मिल यहाँ पे खड़ी हो रही है, एक इंडस्ट्री पूरे 25 एकड़ में इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। सभी से बात करना हुआ, सभी से डिस्कशंस की, शुरू हो गई इंडस्ट्री। और फख्र के साथ, बहुत नम्रता के साथ, लेकिन अभिमान के साथ आप सभी को शेयर करते हैं, ये इंडस्ट्री
आज महाराष्ट्र के टॉप 5 इंडस्ट्रीज में इंडस्ट किया है, जिसको प्राइज मिला हुआ है, स्टेट लेवल के प्राइजेस मिले हुए हैं, नेशनल लेवल के प्राइजेस मिले हुए हैं। ये बताने का पर्पज ये है की दुनिया काय बोल रही थी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, आमच्या जीवनात काय होणार नहीं, हमारे बच्चे ऐसे ही नहीं है, हमारे बेटे इंटेलिजेंट नहीं है। कंपैरिजन, हर वक्त गलत कंपैरिजन चल रही है। वो ऐसा है तो मेरे साथ नहीं होगा, दुनिया ऐसी है तो मेरे साथ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। अगर हमारे सोच में हम कैसे है पहले देखते हैं ना, अगर यस इट इज पॉसिबल फॉर मी, मेरा प्लान फिक्स है, मैं सुबह मेरे बुद्धि को मैंने पहले बताया है, संकल्प के साथ बताया है, पहले तो संकल्प करूंगा वो पूरा करूंगा। हम अगर विचारों में लाते हैं, पहले तो प्रार्थना भक्ति के साथ, जिसको भी हम भगवान, गुरु, अल्लाह, जीसस जिनको भी मानते हैं उनको नमस्कार करके संकल्प सुबह से कि मेरी दुनिया ऐसे, धन्यवाद हे कुदरत, तेरा शुक्रिया, मैं जिंदा उड़ गया हूं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? पहले धन्यवाद के साथ अगर दिन शुरू होता है तो फिर काम ही काम है, क्योंकि अच्छा मैंने बोया है, कुदरत मुझे मल्टीप्लाई करके देगी। मेरे पास अगर 10 लोग हैं तो उसमें से चलो 5 लोग हैं, हमें लगता है निगेटिव है, निगेटिव एक्चुअल में नहीं है, लेकिन 5 अच्छे लोग हैं, हम फोकस करके उनके ऊपर बात कर रहे हैं क्या? अच्छी बातें होना भी जरूरी है। सुबह उठते ही अगर पेपर का पहला पेज निकाल के अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? हमारे विचार कैसे बनेंगे? और फिर दुनिया वैसी ही है ऐसा हमें लगेगा। उस पेपर अगर पढ़ने की आदत है, अच्छी बातें से शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अली, ये सब कुछ क्यों आया है? इसलिए दिया गया है कि भाई उठो, जागृत हो जाओ, अपने विचारों में जागृत हो जाओ, क्योंकि ये जो दुनिया है यहाँ पे सब कुछ अच्छा हुआ है। और चेंज होने के लिए अगर लगता है अरे मेरा जीवन में इतनी तकलीफ है, तो बुद्ध के एक एग्जांपल के साथ आपके शेयर करता हूँ। बुद्ध चल रहे थे, रोड पर चल रहे थे, और हुआ क्या, एक डाकू था, तो अंगुलीमाल डाकू करके था, तो वो बुद्ध को बोला ये रोड से नहीं जाओगे आप, मैं आपको मारूंगा, आपको खून करूंगा, आपको लूटूंगा। वो तो लुटेरा था, द रोड घेर था। तो उसने सब कुछ बोलने के बाद लोग भी पहले बोल रहे थे बुद्ध को, वो रोड से मत जाओ, वहां पे डाकू है, वो लूटता है, हर एक को मारता भी है। तो बुद्ध ने बोला ठीक है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। बोला क्यों नहीं मार सकते हो? मेरे पास सब कुछ हथियार है, मैं मारूंगा आपको। तो बुद्ध हंसे और बोले तू मुझे नहीं मार सकता है, इस शरीर को मार ले लेकिन मुझे नहीं मार सकता है। वो 2 मिनट रुका, आज तक मेरे साथ ऐसी किसी ने बात नहीं की, मुझे नहीं मार सकते, मुझे नहीं मार सकते, ये क्या बात है, ये क्या बात है? और बुद्ध के उस एक लाइन की वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। पता नहीं कौन सी लाइन या कौन सा शब्द किसी के जीवन में आएगा, वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। उसके बाद वो बुद्ध का सबसे बेटर शिष्य बना। उसको ये एहसास हुआ कि ये शरीर मर सकता है, लेकिन जो असली मैं जो अंदर है वो मौन से ही देखा जा सकता है। ध्यान में शांति से बैठ के, वो मौन में बैठ के एक एक विचारों को समझ के होश के साथ उसको देखते देखते, इसको सपोर्ट करेगा, योगासन सपोर्ट करेगा, प्राणायाम सपोर्ट करेगा, लेकिन ये पूरा पैकेज है। जीवन को सुंदरता से देखना है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन 5 स्तरों पर, तो अंत में कभी तो पता चलेगा। शारीरिक तो बहुत कुछ किया, व्यायाम नहीं किया, मानसिक बार बार तुलना करते थे, परेशान करते थे, लोगों की बातें अंदर रखते थे, उसकी वजह से आज तक फ्री नहीं हुए, आजादी का दिन आजाद नहीं हो पाए। बस 15 अगस्त 26 जनवरी मना रहे फ्लैग होस्टिंग के साथ, लेकिन अंदर से आजाद नहीं हो पा रहे। क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जीवन बेस्ट है उसकी तरफ पहले ध्यान देते हैं। ध्यान किसकी तरफ देश रहे? होश के साथ और जोश के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम करना शुरू कर देते हैं, एक सिंपल बात बताते हैं इसके ऊपर भी। जहाँ पे मैं कोल्हापुर में रहता हूँ, वहां पे सभी एक ऐसा कॉलोनी है, बंगलों का एरिया है, तो वहां पे सोसाइटी के कुछ लोग बोलते थे, ये वहां पे कॉर्नर पे कुछ लड़के बैठते हैं उस कॉर्नर में, वो कॉर्नर के लड़के परेशान, बार बार वो गाड़ियां जोर से चलाते हैं, ऐसे वो लड़के, वो है। सभी से जब भी एक कुछ शुरू की बात है, जब वहां पे रहने के लिए गए थे, तो वहां पे तो शुरू में सुना कि सब बोल रहे हैं बच्चे खराब है, ये लड़के ऐसे हैं, ये लड़के बार बार मोबाइल पर वाईफाई किसी का चुरा के वो यूज करते रहते हैं। तो वहां पे हुआ क्या, खुद को निमित्त बनना हुआ, मेरी मिसेस भी साथ में थी, और अभी नेक्स्ट स्पीकर जो है 22 साल की
बेटी स्वरदा फडणीस आज इंटरनेशनल स्पीच दे रही है, इंजीनियरिंग अपना अपना जॉब करते हुए ये सब कुछ कर रही है। हम साथ में मिलके पहले क्या किया, सब लड़कों को एक साथ लिया, क्या हम शाम को कुछ खेल सकते हैं क्या? हमारे यहाँ पे कॉलोनी में कुछ बच्चों के या बड़ों के पास भी कुछ अच्छे गुण है, क्या उसके ऊपर कुछ गेट टुगेदर जैसा कर सकते हैं क्या? शुरू में उनके साथ कुछ खेलना हुआ, छोटे छोटे गेट टुगेदर किए, वो रंग पंचमी होली थी, उस वक्त उनको लेके, किसी को हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन साथ में अच्छी तरीके से हम आनंद मनाएंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। कुछ सालों पहले बच्चों के बारे में ऐसे सोचते, आज वही कॉलोनी में सब प्रोग्राम बच्चे ऑर्गेनाइज करते, वही बच्चे थे। दुनिया के लिए पहले क्या था, बच्चे गलत थे, और आज सभी लड़कियां उस शान के साथ वहां से घूमती है कॉलोनी से, ये लड़के हमारे लिए प्रोटेक्टर है, ये लड़के प्रोग्राम्स में आगे आते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसे हमें दिखती है, बल्कि वैसी है जैसे हमारे विचार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे जाते हैं। 10 क्लास में 10 टीचर पढ़ाते हैं, एक टीचर को बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। क्या है ऐसा वहां पे, कौन सा आनंद है, कौन से विचारों की प्रोसेस अंदर हो रही है जहां पे वो अट्रैक्शन आ रहा है। पढ़ाई की बात सेकेंडरी रहती है। मेरा व्यक्तिमत्व, स्वामी विवेकानंद उसे व्यक्तिमत्व कहते हैं, मेरा व्यक्तिमत्व, प्रेजेंटेशन, मेरे विचार अगर अच्छे है तो आएगा ही, सब कुछ आएगा। तो ये विचारों का ये इंपॉर्टेंट है, ये हम साथ में लेके जाना है, इस विचारों को साथ में लेके जाना है, तो फिर ये हो ही जाएगा। योग हम समझ में आएगा, फिर मेडिटेशन के लिए शांति से बैठ के एक एक विचारों को देखेंगे, और वो फिर विचारों की जीरो प्रोसेस हो जाएगी। जीरो अवस्था में उस मौन की आनंद है जो बुद्ध को आया है, गुरु नानक जी को मिला हुआ है, कबीर है, मीरा है, ज्ञानेश्वर जी को मिला है। और मेरे सेशन का टाइम अभी जैसे 3 मिनट रह गया है, तो 3 मिनट में एक शेयर करता हूं, इस विचारों के ऊपर हम कैसे देख सकते हैं। संत ज्ञानेश्वर का हमने उदाहरण सुना हुआ है। माँ बाप देह त्याग कर दिया था शुरू में ही, बच्चे थे कितने, 8, 10, 12 साल के बच्चे थे, 4, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, 4 भाई बहन थे। वो 8 से 12 के बीच में के बच्चे थे। खाना खाने को लोग नहीं दे रहे थे, गांव के बाहर उनको घर दिया हुआ था, ना प्रॉपर्टी, ना 7/12, ना फादर है, कुछ भी नहीं है साथ में। देखिए, दुनिया ने तकलीफ दी है, दुनिया परेशान कर रही है, हाथ में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से विचार होश वाले और जागरूक है। इसीलिए ये दुनिया के लिए हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में क्या करते हैं, परेशान, उसने मुझे तकलीफ दी ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। और ये दुनिया ने तकलीफ दी, तो ज्ञानेश्वर जी ने क्या किया, पसायदान लिखा। पसायदान मतलब प्रसाद है। प्रसाद में उन्होंने क्या लिखा, जो जे वांछील तो ते लाओ, जिसको जो चाहिए वो उसको मिलो। प्रार्थना ईश्वर से, कुदरत से प्रार्थना की, जो जो चाहता है जो उसे मिले। कितनी बड़ी प्रार्थना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस सी मीनिंग के साथ जो चाहता है जो उसे वो मिले। और ये नहीं कहा उन्होंने, दुरितान से तिमिरत जाओ, जो दुरित है, गलत प्रैक्टिस से, गलत थॉट्स वाले, जिनके जीवन में गलत बैठा हुआ है, उनके जीवन, उनको ही नहीं खत्म करो, उनके जीवन का अंधेरा चला जाए। दुरितान से तिमिर जाओ, उनके जीवन का वो अंधेरा चला जाए। और एक बार ये थॉट्स में आ गया, ये विचारों में आ गया, तो जीवन कितना धन्य है, कितना धन्य है। तो आइए इसी विचारों को पहले देख लेते, तो जीवन में योगा और मेडिटेशन सही ढंग से उतरना। क्योंकि पहले विचार, फिर होश, होश के विचार, धन्यवाद देते हैं, क्षमा मांगते हैं, ये सभी जो बातें, कुछ छोटी छोटी बातों को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बेल बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कितना परेशान होते हैं हम, खोलना कितनी बार सांगितलं तुला, दरवाजा नहीं खोलता, अरे कितना गुस्सा होते है। 2 मिनट, 1 2 3 4 5, छोटी छोटी बातें, गाड़ी 3 किक में स्टार्ट नहीं हो रही, चिल्ला रहे, थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं। ये विचारों में लाना है, होश के साथ फोकस करना है कि मेरा जीवन बेस्ट करना है, 5 स्तर पर। पैसे की तरह सब अच्छा है ना, पैसा ना मेरे लिए आ ही जाएगा ना जीवन में। ये आगे के कुछ सेशन में आज की कहने के लिए मेरी बेटी है, लेकिन इस लाइन के साथ मैं खत्म करूंगा। ज्ञानेश्वर अगर 16 साल में ज्ञानेश्वर लिखते हैं, तो आज के सेशन से पहले जो स्वरदा फडणीस है, इंटरनेशनल पूरे स्पीचेस देती रहती है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट है, लेकिन उसे ये बताया गया कि अपने करियर, अपने गोल, वो सब कुछ रखो, लेकिन विचारों में कुदरत को धन्यवाद दे दो कि मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ।
मुझे ये सब कुछ मिल रहा है और इतनी छोटी उम्र में करियर भी है, यही दुनिया में रहता है, ये दुनिया मेरे लिए बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं दुनिया में, कोई तकलीफ नहीं, इस विचारों के साथ रहो, दुनिया बेस्ट रहेगी। तो साइंस कॉलेज और सभी अपने जो फैकल्टीज है, सभी टीचर्स, प्रोफेसर, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की वजह से कुछ बातें जो कुछ बूंद थी वो शेयर करने के लिए, अच्छा है वो सब जो संस्थापक सरसी जी का है उनका है, कुछ गलत वर्ड्स है तो वो मेरे है, मुझे वापस दीजिए क्षमा के साथ, जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। अभी नेक्स्ट स्पीकर को कुछ सेकंड में मैं आमंत्रित करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट। Thank you so much, sir. This information was marvelous for us. We learn importance of yoga, pranayam, exercise, and main important thing is thought process. Thank you, sir, once again. So let me introduce second resource person, Honorable Srimati Swarda Chandrasekhar Fadnis. Ma'am has done electronic and telecommunication engineering from Kolhapur Institute College of Engineering, Kolhapur. Ma'am has a wonderful experience in speeches such as winners in international, national, district level speech competition, delivered speech at college, school, prestigious lecture series. In art field, ma'am pursuing education in classical singing, classical dancing, Kathak, Indian classical and Western instruments, player harmonium, tabla, basuri, and synthesizer. In theatre area, ma'am awarded as a best actress by Maharashtra government, participate in prestigious drama competition, directed the one of the act plays, and ma'am anchored the international conference such as TEDx. In literature, wrote the poems, one act play, skit, work as a content writer. So I request Honorable Srimati Swarda Chandrasekhar Fadnis, ma'am, to please guide us. गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। नमस्कार, आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जो आज का सेशन है मेडिटेशन योगा के साथ कुछ विचार आयाम, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। आज के जो है तो उसके बाद का जो विचार आयाम है सब कुछ भरपूर है। हम जीवन में जब जाते हैं, जीवन को देखते हैं, तो कितने बार ऐसा होता है कि हम धन्यवाद का फील करते हैं। जैसे ही अभी बताया कि हम सुबह उठते हैं तो कितनी बार हमें धन्यवाद का ये भाव आता है। हमारे लिए हमारे जीवन में जो भी दिया है वो सब कुछ भरपूर है। ये कैसे हम देख पाते हैं या नहीं पाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक छोटी सी कथा है, उसको देखते हैं हम। एक गाव में बाढ़ आती है, पूर जसा गावामध्ये येतो, तर गावामध्ये पूर आलेला असतो। तो क्या होता है, सभी लोग गांव छोड़ने की तैयारियां करते हैं। जैसे भी पूर आ जाता है तो सभी लोग जो है गांव छोड़ने लगते हैं। तो गांव में एक इंसान है, उसको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है। तो होता क्या है, गांव के लोग उनसे पूछते हैं कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो वो इंसान क्या कहता है कि नहीं, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, आप सभी जाओ। थोड़ी देर बाद पानी बढ़ने लगता है। तो होता क्या है, एक बोट, लाइफ बोट जो कहते हैं, वो बोट आ जाती है। लोग उन पर चढ़ते हैं। लोग भी पूछ रहे होते हैं कि आप अभी भी आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो वो कहते हैं कि मेरा भगवान है, वो मुझे बचा लेगा, आप सभी लोग जाओ। उसके बाद पानी बढ़ने लगता है, हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। तो उसके बाद लोग वापस पूछते हैं कि अब ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर है, आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो वो इंसान फिर से एक बार बोलता है कि मेरा भगवान है, वो मुझे बचा लेगा। तो उसके बाद क्या होता है, पानी बढ़ने के बाद उनका देहांत हो जाता है। तो कथा में ऐसा बताया है कि वो देहांत होने के बाद भगवान के यहाँ जाते हैं और भगवान से वो पूछते हैं कि भगवान, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, आप क्यों नहीं आए मेरी सहायता करने के लिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, वो जो लाइफ बोट थी, बोट थे, हेलीकॉप्टर थे, वो किसने भेजे थे, हमने ही भेजे थे। आपने उसका लाभ नहीं लिया। आप खाली बोलते रहे कि भगवान बचा लेंगे। भगवान ने जो दिया हुआ साधन है वो आपने यूज।
तो भगवान ने हमें जो जीवन दिया है उसका यूज हम कैसे करने वाले हैं, हमें जो मनुष्य देह दिया है उसको हम कैसे कैसे ट्रीट करने वाले हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि व्यायाम करने वाले हैं हम, तो ये व्यायाम के साथ उस शरीर को हम देख रहे हैं क्या, जो आज हमें स्वास्थ्य मिला है। आज लोग आईसीयू में है, वेंटिलेटर्स पे है, तो भगवान ने हमें जो जीवन का पूरा आयु दिया है, ये जो स्वास्थ्य दिया है, ये पूरा हम देख रहे हैं क्या, ये सब कुछ भरपूर है। तो इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं क्या। जैसे हम बारिश में जाते हैं, तो बारिश में क्या होता है, तो बारिश में ना भीगने के लिए हम छाता लेते हैं। छाता लेने के बाद कैसा होता है कि हम भीगते नहीं है, तो बाकी सब पानी जो है छाते के बाजू से गिरता है। तो भगवान भी हमारे ऊपर कृपा की बारिश कर रहे हैं। निसर्ग, नेचर, गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी हो, वो हमारे ऊपर कृपा की बारिश कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस वक्त, हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कृपया हम म्यूट करते हैं, धन्यवाद। यस, तो हम क्या किए हुए बैठे हैं, हम बस छाता लिए हुए बैठे हैं। कौन सा छाता, कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, ये देखते हुए बैठे हैं। हमारे पास जो नहीं है वो देखते हुए बैठे हैं, लेकिन भगवान ने जो दिया है वो सब कुछ भरपूर है। तो ये जो नहीं है वाला छाता आज हम हटा देने वाले हैं। तो उसके बाद क्या होगी, बस कृपा की ही बारिश होगी। देखेंगे कैसे, सब कुछ भरपूर है इस साथ देखेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कंपैरिजन हो जाता है कि इसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसके पास बंगला है, इसके पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। यस, यस, हम म्यूट करते हैं, धन्यवाद। तो इस कंपैरिजन में जब हम उलझते हैं, तो ये सब कुछ भरपूर है वाला सेंटेंस, ये जो वाक्य है, हमारे जीवन में नहीं उतरता। तो आज की तारीख में हम क्या बोलने वाले हैं, सब कुछ भरपूर है। हमारे पास स्वास्थ्य है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रिश्ते हैं, ये सब क्या है, सब कुछ भरपूर है। हम जब कुदरत को प्रार्थना करते हैं, जीसस, अल्लाह, जो भी हो, उनको प्रार्थना कहते हैं, तो हाथ जोड़कर कहते हैं, ऐसे करते हैं। तो आज हम हाथ खोल के कुदरत को कहने वाले हैं कि हमारे पास सब कुछ भरपूर है। अब आप जो देने वाले हो, आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से, जब हम ओपन अप हो जाते हैं, तो बहुत सी चीजें हमारे पास आने लगती है। और जब हम ये साक्षी भाव से देख रहे होते हैं, तो बहुत सी चीजें आ रही है, उनका लाभ भी लेना होता है। तो ये विचार आयाम में ये जो आयाम है, सब कुछ भरपूर है, इसकी प्रैक्टिस हम आज से ही शुरू करने वाले हैं। उसके बाद का जो नियम है, मनुष्य पर दूसरों के विचार तब तक नहीं होता जब तक मनुष्य वह खुद नहीं होने देता। इसका मतलब क्या होता है कि बाकी के विचारों का, बाकी के लोगों के तरंग का हमारे ऊपर थोड़ा बहुत तो असर होता है, लेकिन हमने तय किया कि हम असर नहीं करने वाले। तो क्या होगा, तो ये कोई भी निगेटिविटी हमें नहीं छूने वाली, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, हम ऑर्डर दिया है कि हमारे पास सब कुछ भरपूर है। मनुष्य जन्म ये ईश्वर ने दिया है, तो हम किसकी प्रॉपर्टी हो गए, ईश्वर जी की। तो हम ईश्वर जी की प्रॉपर्टी है, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी। तो ये निगेटिव तरंग, निगेटिव शक्तियां हमारे ऊपर काम नहीं करने वाली। वापस एक छोटी सी कथा से ये हम पंक्ति, ये हम नियम सुनते हैं। तो कथा क्या है, एक स्कूल के टीचर है, तो उनके बच्चों के लिए उन्हें एक साइकिल चाहिए थी। तो वो जाते हैं, उनके पास इतना बजट नहीं था, इसलिए वो सेकेंड हैंड साइकिल लेने का तय करते हैं। तो सेकेंड हैंड साइकिल लेने के लिए वो साइकिल की दुकान में जाते हैं। जो है वो कहता है कि ये सेकेंड हैंड साइकिल है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से उसको वापस जोड़ा है, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा, ये आप साइकिल ले जाओ। तो वो शिक्षक जो है वो साइकिल सेकेंड हैंड लेते हैं, वो घर ले जाते हैं, उनके बच्चों को उसको गिफ्ट करते हैं, बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन होता क्या है, वो जो प्रोफेसर, शिक्षक है, वो स्कूल में जाते हैं।
स्कूल में जाते वक्त अटेंडेंस हजेरी ते घेतात, तो अटेंडेंस लेते वक्त ऐसा उनको समझ आता है कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपसेंट है। तो वो पूछते हैं कि ये क्यों अपसेंट है? तो बाकी के सब उसके फ्रेंड्स, गुरुजी आपको पता नहीं था क्या, वो उसका साइकिल से एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी एकदम स्टन हो जाता है। वो घर आते वक्त वो विचार उनके मन में चलने लगता है कि इस बच्चे का साइकिल से एक्सीडेंट हो गया और मेरे बच्चे को मैंने कल ही साइकिल गिफ्ट की है, यदि उसका ऐसा कुछ हो जाए तो मैं क्या करूं? ऐसा निगेटिव एक थॉट उस टीचर के मन में आ गया। तो उसके बाद उस बच्चे की हंसी भी चली गई, क्योंकि साइकिल उन्होंने वापस बेच दी। इस निगेटिव विचार के साथ यस खुद को म्यूट करते हैं। धन्यवाद। तो एक निगेटिव विचार हमारे जीवन में कितनी बदलाहट लाता है। जीवन में इतने लोग हमें मिलते हैं, इतने तरंग के साथ हमारा मिलना जुलना होता है, लेकिन अगर हम होश में है, अगर हमारी तरंग अच्छी है, तो हम दूसरों को अच्छी तरंग दे सकते हैं। लेकिन हम होश में तो हमारी तरंग जो है वो बहुत न्यूट्रल हो जाएगी और दूसरों के विचार हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। अगर वो निगेटिव विचार है तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वो काम करने लगेंगे, और उसके बाद जो है कि पूरा निगेटिव ही थॉट आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, खुद को बताने वाले हैं कि हमारे पास सब कुछ भरपूर है। जो विचार है बहुत सकारात्मक विचार है। तो इसके साथ ये दूसरा आयाम जो है ये हम समझने वाले हैं। उसके बाद जो है तीसरा आयाम, अपने अंदर की उच्चतम अभिव्यक्ति के लिए अपने भाव, विचार, वाणी, क्रिया में एकरूपता आनी चाहिए। संत तुकाराम महाराज म्हणतात की बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। कधीपासून आपल्याला हे सांगितलेलं आहे। तो आज की तारीख में हमारे भाव, विचार, वाणी और क्रिया क्या है, हमें देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे भाव कुछ अलग होते हैं, विचार कुछ अलग होते हैं, वाणी कुछ अलग होती है, क्रिया भी कुछ अलग होती है। तो इस हिसाब के अनुसार देखें तो पूरे दिन में मनन करें कि हम किस पर फोकस कर रहे हैं, हम कौन सा विचार कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं। हम दूसरों के बारे में बुरा बात कर रहे हैं, दूसरों के अवगुण ही देख रहे हैं, या पूरे दिन में ऐसा कुछ हुआ है कि हम किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं। ये पूरा आज के दिन में मनन करें कि आज 26 जनवरी, तो आज के दिन में रात को मनन करते हुए धन्यवाद के साथ हम क्या बोलने जा रहे हैं कि आज हमने XYZ पर्सन को मदद की है, ये सेवा का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। तो हमारी जो पार्टी है स्लेट भाव, विचार, वाणी, क्रिया और लेखन, ये सभी जब एकरूपता में आएंगे तब हमारी उच्चतम अभिव्यक्ति होगी। और उच्चतम अभिव्यक्ति के लिए ये ईश्वर, ये हमारा जो पूरा शरीर है, मनो शरीर यंत्र, ये पूरा रेडी हो जाएगा। कृपया हम म्यूट करते हैं। यस, कृपया हम म्यूट में रहते हैं। शिव प्रसाद जी, आप म्यूट करते हैं। शिव प्रसाद जी, आप म्यूट कीजिए। अपने आप को। यस, धन्यवाद। तो ये जो पूरा भाव, विचार, वाणी, क्रिया जो है वो कितने सिंक में चल रही है, आज मनन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आज सभी स्टूडेंट है, तो ऐसा हो जाता है कि हमारे जीवन में एग्जाम ये बहुत बड़ा पड़ाव हो जाता है सभी के लिए। तो स्टूडेंट जब है तो एग्जाम 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 हो जाता है, तो सभी को क्या लगता है कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, ये सबके भाव है कि टॉप कर जाए हम। लेकिन विचार क्या है कि ये हम कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, कैसा होगा, ये कैसा मैनेज होगा, टाइम कैसा मैनेज होगा। कुछ बुक लिया तो हमें क्या होता है, नींद आने लगती है। तो ऐसे विचार आते हैं।
तो ये भाव हो गए, विचार हो गए। हमारे वाणी में क्या है, दूसरों को बोल रहे हैं कि ये इतना पोर्शन है, मेरा नहीं हुआ, मेरा हुआ करके। और उसके बाद जो है वो क्रिया है। जब क्रिया अकेली ही चल रही है तो बाकी के रिजल्ट नहीं आने वाले। तो ये जब सिंक होगा, यस मैं एग्जाम ये पड़ाव है, उसमें हम जो है सक्सेस पा सकते हैं। उसके बाद जो विचार है, यस मैं करूंगा, उसके बाद जो क्रिया है वो रिजल्ट लाएगी। तो ये सिंकअप होना कितना जरूरी है। भाव कैसे कर सकते हैं हम? नेचर से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? कि मेडिटेशन के साथ, मेडिटेशन के साथ ये भाव ला सकते हैं। उसके बाद जो है वो विचार है। विचार यानी कि एक छोटा बीज है, एक बीज पूरे जंगल को बना देता है। छोटा सा बीज पूरा जंगल बना देता है। तो हमारे विचारों, तो हमारा पूरा जो साइकिल है वो बना रहा है। तो हमारी ये विचारों में बीज कैसा डालना है कि ये सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भरपूर है। ऐसा बीज हम जब डालते हैं तो पूरा विचारों का जो साइकिल है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है। तो ये विचारों की तरफ हम देखते हैं। जब मन में द्वेष, मत्सर की भावना हो तो बाकी के कुछ गुण दिखाई नहीं देंगे। ऐसे होता है कुछ लोग कि जो रावण में भी गुण देखते हैं और कुछ लोग राम में भी अवगुण देखते हैं। तो हमें क्या करना है? बस दूसरों के जो गुण है वो लेकर हम आगे जाना है। तो इसके बाद जो विचार का हमारा बीज है, जो विचार की जो पूरा एक पिलर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद वाणी, वाणी जो है, जो कुदरत हमें दे रही है वो हम लेने के लिए बैठे हैं। बस हमें कुदरत को ये कहना है, हमारे वाणी से ये कहना है। और उसके बाद जो क्रिया है, जो मिलेगा उसकी तैयारी हमें करनी है। यस, कृपया आप सभी म्यूट पर है, ये देखें। यस, धन्यवाद। तो भाव, विचार, वाणी और क्रिया, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। तो ये सारा जो है सब एक साथ लाते हैं तो बहुत सी चीजें आपको मिल जाती है। क्योंकि ये विचार आयाम, आहार आयाम, प्राणायाम, व्यायाम किसके लिए है? शरीर के लिए है, हमारे लिए है। हम शरीर से जुड़े हुए हैं तो शरीर क्या हुआ? हमारा मित्र हुआ। बाकी के सब जो है हमारा मित्र है ही, लेकिन हमारा पहला मित्र कौन है? हमारा शरीर ही हमारा पहला मित्र है। तो किसके लिए हम ये कर रहे हैं? हमारे शरीर के लिए कर रहे हैं। ये सब नियम जो है, विचार आयाम, प्राणायाम, आहार आयाम, किसके लिए है? हमारे मित्र के लिए है। तो आज से हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे लिए और हमारे मित्र के लिए ये सभी चेंजेस है वो लाने जा रहे हैं। तो उसके बाद का जो अपना जीवन होगा, आयु होगा, तो इतना बढ़िया होगा, उच्चतम विकसित होगा। तेज ज्ञान फाउंडेशन के सरश्री जी कहते हैं कि हमें उच्चतम विकसित समाज बनाना है। तो क्या करना है? जो चेतना है वो चेतना हमें, जो पॉजिटिविटी है हमारे अंदर की वो बढ़ानी है। किसके साथ? हमारे मित्र के साथ, यानी कि हमारे शरीर के साथ हमें ये पॉजिटिविटी बढ़ानी है। हर घटना में हम सर्वोच्च घटना देखें, हर घटना में हम सर्वोच्च मोमेंट देखते हैं तो ये आनंद हमें भी आ जाता है। तो आनंद पाने के लिए हर घटना में सर्वोच्च क्षण देखते हैं। आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि मैं ईश्वर की दौलत हूँ, जो भी है वो ईश्वर देने जा रहा है, कोई भी निगेटिव एनर्जी मुझे छू नहीं सकती। तो आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी करके ये विचार अंदर, ये बीज अंदर हम डाल देते हैं आज। और ये पूरे दिन के एंड में, पूरे विचारों के एंड में, पूरे जब दिन खत्म हो जाता है तो प्रार्थना हमें क्या करनी है? बस 4 शब्द की ये प्रार्थना है कि प्रिय ईश्वर आपको धन्यवाद, प्रिय ईश्वर आपको धन्यवाद। तो ये बस 4 शब्द की ये प्रार्थना है जो हम आज दोहराने जा रहे हैं। तो ये पूरा जो है, ये पूरा विचार आयाम के साथ हम प्राणायाम और व्यायाम करेंगे तो पूरे जो सिंक है हमारा मित्र के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। आज
मेरा भी एज आप सभी स्टूडेंट के 22-23 का है। मैं जब तेजज्ञान फाउंडेशन यानी कि शशि जी के ये विचारों से जुड़ गई, तो उसके बाद जो रिजल्ट आने शुरू हो गए, छोटे छोटे विचारों के साथ मैंने भी काम किया, जैसे कि स्वीकार का कॉन्सेप्ट अभी बताया गया। ऐसा हो जाता है कि XYZ पर्सन को मैं 7 जन्म तक माफ नहीं करूंगा, 7 जन्म तक माफ नहीं करूंगी, ऐसा हो जाता है। लेकिन छोटा सा क्या करना है वहां पे एक्सरसाइज, स्वीकार। क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? आज आज की तारीख में XYZ काम नहीं हुआ, आज की तारीख में मेरा व्यायाम नहीं हुआ, मेरा एक्सरसाइज नहीं हुआ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये मेरा क्यों नहीं हुआ, ऐसा करके ये बहुत लोग दुखी हो जाता है। तो वहां पे क्या करना है, बस क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? अगर हाँ आया तो आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं आया तो पॉज देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते रहते हैं। किसी ने फोन नहीं उठाया तो भी ये स्वीकार कर लेते हैं। बार बार हमें है, होता क्या है कि हम हमें क्वेश्चन नहीं पूछते, हम ही राइट है करके आगे बढ़ते हैं। इसके वजह से हमारा जो ग्रोथ है, पॉजिटिविटी का जो ग्राफ है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए पूरा जो विचार आयाम है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस हमारे जीवन में आ सकते हैं, बहुत बड़ा सक्सेस हमारे जीवन में आ सकता है। तो आज के विचार आयाम के साथ हम यही रुकते हैं। आपने जो मौका दिया उसके लिए, मेरी वाणी से कोई भी किसी को भी दुख पहुंचा हो तो आप सभी को क्षमा मांगती हूँ, शशि जी को साक्षी रख के क्षमा मांगती हूँ। सेवा का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। अगर कोई किसी को भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। यस यस, धन्यवाद। Thank you, ma'am. थैंक यू। That was awesome knowledge. And the motive is simple. Be open up, open your thoughts, positive thoughts, and focus what you have. Once again, thank you, ma'am. So, for vote of thanks, I request HOD, Department of Sports. Sir, please. Thank you. Thank you. Gurikar, sir, please. Yes, thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I deem it great honor and privilege to propose the vote of thanks of the memorable occasion of one-day national seminar on positive thinking through yoga and meditation. I am Dr. Ashwin Borikar, Director of Sports, Science College, Nanded. Let me first of all start by wishing you all a happy 73rd Republic Day. First and foremost, I express my deep gratitude and sincere thanks to Honorable Dr. Venkatesh Kabde sir, who despite of his busy schedule has found time to grace the inaugural function as a president for one-day national seminar of positive thinking through yoga and meditation. I also express my deep heartfelt thanks to patrons of Nanded Education Society Nanded, Honorable CA Dr. Praveen Patil sir, Vice President Nanded Education Society Nanded, Honorable Sir Shamal Patki Madam, Secretary Nanded Education Society Nanded, Honorable Sri Praful Kumar Agrawal sir, Joint Secretary Nanded Education Society Nanded. We are grateful to our chief guest and today's resource person, Sri Chandrasekhar Fadnis, Sri Vijay Sriramwar, Swarada Chandrasekhar Fadnis, Tejgan Foundation Pune, for enlightening us positive thinking and brightening our path of life. Thank you, sir and madam. And my sincere thanks to Dr. D.V. Gayu sir, Principal, Science College Nanded, and convener of this today's seminar for your encouragement, guidance, and support for this one-day national seminar. I thanks Vice Principal Dr. D.D. Pawar sir and co-convener of this seminar, Dr. L.P. Shinde sir, for your motivation to organize this seminar so smoothly.
My sincere thanks to GC members, CDC members for their timely support and encouragement. My heartfelt thanks to the heads of various departments and faculty for their valuable contribution, guidance in all our efforts. I owe special gratitude to all organizing team, technical support for their cooperation in this organization of the online seminar. Special thanks to Mohsina madam, very special thanks madam, and Sri Ganesh Ghatare sir for their dedication and hard work to make this event a grand success. Last but not least, I owe my sincere thanks to all dear participants and a very special thanks to Dr. Deepak Bachewar sir, MC member, SRTME Nanded, Dr. Vittal Singh Pariyar sir, Director of Sports, SRTME Nanded, Dr. P.N. Deshmukh sir, former Dean and Director of Sports, SRT University Nanded, and special thanks to Dr. Kalpana Zharikar Madam, Director of Sports, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Nanded, Dr. Manoj Reddy sir, former Director of Sports, who have actively participated in this one-day national seminar on positive thinking through yoga and meditation. Special thanks our anchor today's seminar, Swaraj and Shresh, BSc students. Finally, I leave you this inspiring quote. Train your mind to see the good in everyone. Positivity is a choice. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Once again, thank you all for your attention. Thank you very much. Thank you, sir. With the permission of President and Principal, this one-day national seminar on positive thinking through yoga and meditation program has been wind up. Thank you, sir. Thank you to all of. Thank you.